Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can repeat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. So, welcome to this Bhagavad Gita class. And so in ISKCON we'll be calling, all male members will be calling Prabhujis and female members will be calling Matajis there, irrespective of their ages there. Right? So don't feel offended there, Shamishari Mata. So
welcome to this Bhagavati class. Shweta Mataji had a lot of interest there. She requested that this class should be started because this class, about a month back, this class was started in her mother's house there in Alipur. There we did 7 days Bhagavatam class. After that, 7 days Bhagavatam Saptah was there. After that, we started the class. So I'll be speaking in mixed Hindi and English both, combination. First, let me introduce myself, because, and then after I'll take your introduction also, and then we'll start Bhagavad Gita class. So my name is Ramesh Juneja, is my normal name, which official name. But is after initiation ISKCON, दीक्षा लेने के बाद ISKCON में मेरा नाम है मोहन गोविंद दास. So probably you did it. It's मोहन गोविंद दास नाम उसमें. दीक्षा लेने के बाद नाम एक spiritual name है, one is my normal name, legal name is. By profession I am engineer. मैंने 1988 में engineering किया था. After that I worked in various companies there, government as well as private. पहले Instrumentation Limited. I was in Kota that. After that, Airtel Delhi में ज्वाइन किया था ना. Airtel Delhi में काफी टाइम था. मैं नोएडा में रहता था उस समय. उसके बाद then SR Group में ज्वाइन किया. SR सेल मोस्टली टेलीकॉम में, मोबाइल एंड टेलीकॉम में पूरे टाइम. जब इंडिया में मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था 1996 और 1995 में, सो आई वाज देयर ड्यूरिंग सब जगह टावर्स पर लगवाना लगा. सो उस टाइम दिल्ली, वेस्टर्न यूपी में था, दिल्ली में था. उसके बाद देन आई शिफ्टेड टू हैदराबाद. हचिसन, उसमें चाइनीज कंपनी हचिसन हच नाम से लॉन्च किया था. कलकत्ता में आया था. कलकत्ता में कमांड के टाइम में कमांड था पहले, उसके बाद हच हुआ था. हच हुआ तो आई वाज देयर इन हैदराबाद में था उस कंपनी में. हच का जो वहाँ पे लॉन्च हुआ था सर्विसेज, सब बिगनिंग में जब सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज लॉन्च हुई थी, आई वाज देयर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में जब लॉन्च हुआ. देन फ्रॉम हैदराबाद इन 2005 आई मूव टू कलकत्ता. यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल उस समय कमांड की सर्विसेज थी, तो बाद में हच हो गई थी. और दूसरा एयरटेल था, मोदी टेलिस्टार था. उसके बाद बाकी वेस्ट बंगाल में पूरा था. तो आई वाज हेड ऑफ दैट, यहाँ का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर था. टेक्नोलॉजी साइड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर था. उसके बाद में प्रमोशन होके ईस्टर्न रीजन का, इसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, सारी जगह में सर्विसेज, जो मोबाइल सर्विसेज लॉन्च की उस समय 2004-2005 में यहाँ पे सर्विसेज. कलकत्ता में तो पहले लॉन्च हो गई थी, बाकी सब सर्विस में. And then after that, I became National Vice President for Health, Safety and Well-being in Vodafone. No, Hutchison became Vodafone there. But Hutchison became Vodafone. Then in 2016, I left Vodafone in Kolkata itself. I was heading National Health, Safety and Well-being in Vodafone. And after I started, I my own consultancy services. And then after that, for a few years I started consultancy, and then after that I stopped. That's my introduction. Any question, any comment on this? And then when I was in Delhi, Airtel Delhi में 1999 I started associating with ISKCON. ISKCON नोएडा में. अभी तो अगर किसी ने नोएडा में देखा हो टेम्पल, तो anybody is familiar with नोएडा. वहाँ पे बड़ा टेम्पल है राधा भवन का, वो पहले स्टार्टिंग में था. So I associated. In 99 I got associated with ISKCON, or I started going to ISKCON, morning or afternoon program. From there my spiritual career in ISKCON started. मतलब साथ साथ में मैं अपना जॉब भी कर रहा था, and weekends में हम लोग जाते थे. ISKCON, me and my wife, और children also. I had 2 daughters. Both the daughters got married. वो भी ISKCON में, कृष्णा कॉन्शियस में. एक डॉटर इधर ही है कलकत्ता में. शी इज़ वर्किंग गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल में है. और दूसरी डॉटर दिल्ली में है, IT सेक्टर में है. दोनों डॉटर मैरिड है.
और फैमिली, इंटायर फैमिली कृष्णा कॉन्शियस इस्कॉन से एसोसिएटेड है। सो हम लोग 99 से, उसके बाद में बच्चे लोग भी साथ साथ में एसोसिएटेड, तो लास्ट 25 ईयर्स इस्कॉन से एसोसिएटेड। ठीक है, दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे करीब ये क्लासेस पूरे कलकत्ता में क्लासेस हैं, पूरे कलकत्ता में इस्कॉन की क्लासेस होता है, भक्ति सिमिलर टाइप ऑफ गीता क्लासेस अराउंड 200-250 प्लेसेस में होता है, एरिया अलग अलग एरियाज में होता है क्लासेस। एक मेरे घर में होता है, इट इज सिंस 2009 लास्ट अराउंड 18 years से क्लास हो रहा है, घर में हो रहा है। पहले अर्ली यूज्ड टू स्टे लवलाक प्लेस, कलकत्ता पंजाब प्ले के पीछे जो लवलाक प्लेस है वहाँ पे थे, वहाँ से शिफ्ट हुए, फोर्ट ओएसिस जो भी पंडित रोड फोर्ट ओएसिस बिल्डिंग में, वहाँ पे क्लासेस हो रहा है। लास्ट करीब 25-26 लोग उसको अटेंड कर रहे हैं, उसमें से कई 17-18 ईयर्स अटेंड कर रहे हैं, कई लोग 10 साल से, फिर और भी लोग उसमें ऐड होते गए। भागवत गीता क्लास हो रहा है उसमें। और एक फ्राइडे को क्लास होता है तिवोली कोर्ट में, इवनिंग में, फ्राइडे इवनिंग भागवतम क्लास होता है, संजय मित्तल प्रभु में तिवोली कोर्ट वहाँ पे होता है। एक जो मैं ले रहा हूँ क्लास, और एक सैटरडे टेम्पल में लेता हूँ, और एक अभी अलीपुर में सैटरडे इवनिंग में श्वेता माता जी के मदर के घर में स्टार्ट हुआ लास्ट 1 मंथ। 3-4 क्लासेस में पर्सनली ले रहा हूँ, भागवत गीता का और भागवतम, और बाकी जो क्लासेस हैं ग्रुप के अलग मेंबर्स लें। तो इस तरीके से कलकत्ता में करीब 200-250 जगह क्लासेस चल रहा है सिटी एरिया में, बाकी रूरल एरिया में अलग क्लास का मॉडल है। एंड पूरे इंडिया में thousands of classes are going on all cities and worldwide भी सारी जगह पे, यूएस में, शिकागो में, सैन होजे में, कैलिफोर्निया एंड सैन फ्रांसिस्को और सब जगह क्लासेस, पूरे वर्ल्ड में क्लासेस होता है। कई जगह डायरेक्ट लेक्चर होता है, कई जगह क्लासेस इंटरेक्टिव क्लासेस होता है, सब जगह पूरे वर्ल्ड में। इस्कॉन का मेन उद्देश्य लोगों को गीता के बारे में, गीता और भागवतम के बारे में सिखाना, और भगवान की, राधा कृष्ण की भक्ति कैसे की जाती है इसके बारे में सिखाना। दैट इज द पर्पस ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, इस्कॉन का इंट्रोडक्शन होगा। एनी क्वेश्चन दिस? नहीं तो आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जैसे आपका नाम बता सकते हैं, एंड देन इफ you any about your spiritual background, if any, you know. So I want to ask personal background, but spiritual background. If you know anything about Gita, you can tell 1 or 2 lines there, and after that we'll start. We'll start going Hindi, English, Bengali, this language. Mama को भी करना। नहीं? Mama से start करना। हाँ। आप इससे पहले कभी गीता के बारे में कुछ, भागवत गीता के बारे में कुछ पढ़ा है या कुछ जानते हैं? कोई बात पढ़ा तो है। ठीक, थैंक यू। और बैठे बैठे कर सकते हैं क्विकली, जस्ट इनफॉर्मल है। क्या वृद्धि अग्रवाल? सॉरी, वृद्धि अग्रवाल। I have attended Gita classes. नित्यानंद जी। नित्यानंद, अच्छा, वो बॉम्बे से जाते हैं। So you are still attending that class? On and off. But before I used to be very regular. Okay. So in this class you will be regular? Yes. Thank you. I'm Preeti Kayal. So मुझे मेरा बहुत मन था आपसे क्लास करने का। मैं श्वेता के यहाँ भागवत सुनी थी, तो she only told us about you. So I'm very grateful कि आप हमारे घर आए और सबको कराए। It's very blessed for all of us. Thank you very much for inviting me. Thank you. गुरुजी, आई एम साक्षी कयाल। ये मेरा फर्स्ट गीता क्लास है।
So looking forward. I hope I'm regular. Thank you. My name is Reshmi Mota. Attending तो मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ, but मैंने पढ़ा है पूरा गीता. Thank you. My name is Sonal Bodhika. So I've watched entire Srimad Bhagavad Gita, but this is my first class as a like class. So you watched Srimad Bhagavad Yeah. Gita? TV. TV. Thank you. प्रणाम गुरुजी, मैं वर्षा पुरानी। मैंने अभी तक गीता की कोई क्लास तो अटेंड नहीं की है। मैंने भी पढ़ा है पर मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई लाइफ के साथ, इसलिए मेरा मन था कि मैं एक बार गीता की क्लास करके कुछ आगे बढ़ूँ। Thank you. प्रणाम, मैं श्रुति डोगर। मैं गीता क्लासेस जन्म मिशन की वर्कशॉप्स भी करती हूँ कालरा जी से। नित्यानंद जी का भी मैंने किया हुआ है। सो आई एम वेरी इंक्विजिटिव आपका पर्सपेक्टिव और आपसे सुनने के लिए। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी, मैं कुमुद डाला। मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ एंड होपफुली पूरा कंटिन्यू करूँगी। Thank you. प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम है अक्षता साटा। दिस इज माय फर्स्ट क्लास गीता क्लास। Thank you. गीता क्लास है। Thank you. प्रणाम गुरुजी, मैं प्रियंका चलान। मैंने कोविड में ऑनलाइन गीता क्लास किया है, बट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी। 10-12 क्लासेस ही की थी सिद्धार्थ जी से पुणे। Thank you. हो गया सब इंट्रोडक्शन? हमारा पहले ये गुरुजी कहते प्रणाम गुरुजी, मैं प्रियंका पटवारी। मेरा ये फर्स्ट गीता क्लास है, बट कुछ पिक्चरें देखी है, मूवीज़ देखी है और मम्मी पापा से सुन के कुछ पता है गीता के बारे में, बट पूरी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं सुनना चाहूँगी, समझना चाहूँगी। Thank you. नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम शुभ्रा दुक्कड़ है। मेरी पहली क्लास है, तो होप टू लर्न एंड गेट इंस्पायर्ड। थैंक यू। Thank you. हेलो, नितिका अग्रवाल। गीता क्लास ऐसा सच नहीं किया हुआ है, पर काफ़ी कुछ सुने हैं। अभी इंस्टाग्राम में भी कुछ आते रहते हैं। जस्ट वांट टू रिलेट माय एक्चुअल लाइफ विद दिस कनेक्ट बेसिकली गीता। Thank you. हो गया सब? हेलो, मैं साक्षी कोटा। ये मेरा भी पहला गीता क्लास है एंड आई एम आल्सो होपिंग दैट आई कैन कनेक्ट विद इट। Thank you. थैंक यू। दो शिष्य और आगे Very good. You called everybody. Thank you. कलेक्टिव एफर्ट है प्रभु जी। साक्षी ने, प्रीति भाभी ने, फ्रेंड्स Very ने। good. Very good. हेलो, माय नेम इज श्वेता दयाल। मैंने प्रभु जी का भागवत सुना था मम्मी के घर पे, तो तब से इच्छा थी कि प्रभु जी के साथ क्लासेस करूँ। ये इच्छा बहुत पुरानी थी कि गीता सीखूँ, समझूँ, और थैंकफुली भागवत होने से, प्रभु जी से मिलने से टुडे इज पॉसिबल। एंड आई एम सो ग्लैड आप लोग सब आए हैं। एवरीबडी इज कमिंग जर्नी मेकिंग अस हैपी। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, आप लोग just because sorry you are late, so I already introduced myself and everybody is introduced. Up here just you can give tell your name and then if you have any background of Gita or whether you study or this is your first class, and you can just name and then. Hello everybody, I'm Anshu and namaste, and this is my first class. Thank you. Hello everyone, my name is Vinita and this is my first class. Hare Krishna. Hi, this is Isha this side and it's my first class. Hare Krishna. Chitri, प्रणाम गुरुजी। This is my first class. Thank you. Okay, so you can ask from Shweta, those who have come late there. I have given my introduction there, and then everybody has given introduction. So
will be calling all of you Mataji's name, and you can call me Prabhuji. Rather than, yeah, once Gita class is complete, and then after that you can call me Guruji because I have not taught you so far. So kindly you can call me Prabhuji. I will call you Mataji's name, and that is all. And then we'll replace hello and hi with Hare Krishna. Now, how many of you are familiar with the word Krishna? Or how many of you are familiar with the word God, and then how much you know about God? Who is God, firstly? So first, should I all sequentially? Because before I start Bhagavad Gita, this background is must. Who is God? Who is Krishna? I am starting from ABCD. Probably you may be knowing, some of you may be knowing, maybe having advanced knowledge there, but I will start with basic things there, so that we will build foundation based on that. No confusion, no there. At the end of this Bhagavad Gita, you should have complete clarity of Bhagavad Gita, why Bhagavad Gita was written, what is the essence of Bhagavad Gita, and how Bhagavad Gita is benefiting all of us in our real life. Bhagavad Gita, मैं दोनों में बोलूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों. Bhagavad Gita life manual है. Bhagavad Gita is life manual. It's like when we buy a refrigerator लाते हैं घर में, उसके साथ में एक मैनुअल आता है, बुकलेट आती है. आजकल पेन ड्राइव में या उसमें आने लग गया, या टीवी आता है. पहले बुकलेट आती थी, अभी भी आ रही है बुकलेट, हार्ड कॉपी आती है. बुकलेट किस लिए आती है? उसके साथ में रेफ्रिजरेटर, टीवी या कोई भी लैपटॉप भी लेते हैं, कोई भी मशीन लेते हैं, उसके साथ में बुकलेट क्यों आती है? हाउ टू ऑपरेट. वेरी गुड. हाउ टू ऑपरेट, उसको कैसे चलाया जाएगा. ऑपरेट करने के लिए जो भी नया, रादर देन फिंगरिंग करने के, इधर उधर हाथ लगाने के, और उसको ये स्विच वो स्विच प्रेस करेंगे, उसके बजाय मैनुअल पढ़ के करेंगे तो मैनुअल में पिक्चर भी रहेगा, ऐसे ऐसे ऑपरेट करना है और देख जाओ ऑपरेट. अदरवाइज वो इक्विपमेंट या अप्लायंस है वो खराब हो सकती है. अगर हम जस्ट ट्राई करते रहे लैपटॉप पे, तो ये बटन दबा दो, वो बोलेगा ये बटन. नॉर्मली हमने देखा है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टर रहता है, जब भी कोई वॉल प्रोजेक्टर के रहते हैं, तो प्रोजेक्टर में कोई कुछ बटन दबाता है, कोई कुछ का दबाता है, और प्रोजेक्टर खराब हो जाता है. तो सब लोग ट्राई करते थे, मैं इधर से ट्राई करता हूँ प्रोजेक्टर में नॉर्मली प्रेजेंटेशन के लिए. तो इसी प्रकार से लाइफ को ऑपरेट करने के लिए मैनुअल है. लाइफ को ऑपरेट करने के लिए, लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए मैनुअल है. दिस मैनुअल इज कॉल्ड भगवद गीता. इस मैनुअल को भगवद गीता. अदरवाइज हम लाइफ को हिट एंड ट्रायल से चलाएंगे. कोई हमारा फ्रेंड बोल देगा अरे लाइफ को तो ऐसा चलाना चाहिए, कोई दूसरा बोल देगा अरे लाइफ को तो ऐसा चलाना चाहिए, कोई तीसरा बोलेगा मैं तो ऐसा चलाता हूँ, चौथा बोलेगा मैं तो चलाता हूँ. जितने लोगों से सोसाइटी में मिलेंगे सब बोलेंगे अलग अलग, हमारी तो लाइफ स्टाइल अलग है, हमारी लाइफ स्टाइल. इस तरीके से जो नया व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो जाएगा, गेट कंफ्यूज्ड है, he or she will get confused है. और वो लोगों को फॉलो करे या किसको फॉलो करे, कंफ्यूज, पूरे थ्रू आउट लाइफ कंफ्यूज है कि कैसे चलाऊं. वो तो ऐसे चलाता है, मैं उसकी कॉपी करूं या इसको चलाऊं, ये कॉपी करूं, या सोसाइटी ये बोल रही है ये बोल रही. बट भगवद गीता जो है, इसको करने के बाद और सुनने के बाद में a person can independently run his or her life very smoothly, because person will be full in knowledge. There will be complete knowledge. No need to take guidance from any colleague, friend or member of society or person walking on street. किसी से भी ज्ञान लेने की जरूरत नहीं कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, और मैं अपनी लाइफ को कैसे अपडेट करूं. When I am in depression, how to get motivated. मैं डिप्रेशन में कैसे मोटिवेट अपने आप को करूं, या दूसरों को कैसे मोटिवेट करूं. नॉट ओनली मोटिवेशन फॉर माई सेल्फ, पर दूसरों को कैसे मोटिवेट करूं. हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, हाउ टू कम आउट ऑफ ऑड सिचुएशन. ये सब भगवद गीता में सारे आंसर है, गारंटीड है सारे आंसर. Before I start, I take guarantee of this thing. Bhagavad Gita will answer all the questions there, and this book will make a person confident about this thing. So this is a spiritual book, but
it is also guiding us about material life there. Because words have been spoken by Lord Himself, God Himself. Who is God? Can I request everybody to keep the mobile phone in silence mode? Can you please check? Okay? For next more than 1 hour. Yes. So this is a book where words have been spoken by Lord Himself. Who is the creator? Who has created human beings? जिन्होंने मनुष्य बनाए. तो अगर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, रेफ्रिजरेटर में कोई प्रॉब्लम है, या वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के बारे में बेस्ट कौन बता सकता है? मैन्युफैक्चरर, राइट? उसको तो पता है कि इसमें क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उसको उसी के बेस पे सारे मैकेनिक लोग रिपेयर करते हैं ट्रेनिंग लेके. कौन करता है ट्रेनिंग? कौन देता है? मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर को पता है कि क्या डिफेक्ट्स होते हैं. उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, whether मेल और फीमेल और चाइल्ड और ओल्ड एज, क्या प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में और कैसे कैसे लाइफ रन करना है, वो पूरा के पूरा लॉर्ड हिमसेल्फ इज स्पोकन इन दिस भगवद गीता. दिस मैनुअल इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, कंप्लीट. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरा उपदेश दिया. एंड इट्स नॉट सिटिंग इन एयर कंडीशन रूम, बड़े कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं दिया. This course has been given in most difficult situation. हम भागवत गीता में देखेंगे, we'll study in भागवत गीता. Arjun, when he was most confused, इतना confused था और उसको पता नहीं था कि आगे क्या करना, उस कंडीशन में भगवान ने कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में, on the battlefield of कुरुक्षेत्र, ये उपदेश दिया गया. तो मोस्ट रिलेवेंट है कि हमारे लिए इसलिए उपयोगी कि हम कोई भगवद गीता ज्ञान जब हमारे लाइफ टफ होती जाए, संघर्ष होता है, जीवन में स्ट्रगल रहे, तो भागवत गीता हमें हमेशा गाइड करती रहेंगी. इसीलिए ये भागवत गीता ऐसा, इसको इजी नहीं लेना है कि चलो भगवान कृष्ण ने दे दिया है तो स्पिरिचुअल बुक है, हमारी लाइफ से क्या मतलब इसका. दिस इज फॉर लाइफ ओनली, फॉर आवर लाइफ ओनली. दिस इज नॉट लाइफ फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, उनकी लाइफ के लिए नहीं है, ह्यूमन बीइंग के लिए, मनुष्य के लिए बनाई गई. मनुष्य के लिए भगवान ने तो अर्जुन को उपदेश दिया. अर्जुन तो भगवान का डियर फ्रेंड था, डिवोटी भी था, बट ही परफॉर्म्ड द रोल ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन. हमारे जैसा एक रोल किया कि अगर कंफ्यूज हो जाए. जैसे अगर टीवी में आपने कोई इंटरव्यू देख रहा होगा, डॉक्टर को इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया है, डॉक्टर के इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो जो इंटरव्यू लेने वाला है, सपोज किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को बुलाया, तो इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कैंसर में क्या क्या करना चाहिए, क्यों कैंसर होता है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, हाउ टू क्योर कैंसर भी पूछता है. इसका मतलब ये नहीं कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको कैंसर है, उसका मतलब वो नहीं. वो किस लिए पूछ रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ ऑडियंस, जो भी टीवी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनके बिहाफ. सिमिलरली अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से भागवत गीता के क्वेश्चन पूछे, बीच बीच में प्रश्न पूछे, तो अर्जुन ने अपने लिए नहीं पूछे, वो तो डिवोटी था, बट अर्जुन ने asked all those questions on behalf of all of us and generation for next 1000 years, millions of years, billions of years, generation which is going to come. उनके behalf पे ये क्वेश्चन पूछे जिसके भगवान कृष्ण ने आंसर. कोई बोल सकता है भागवत गीता तो 5000 साल पहले बोली गई थी, आज का रेलेवेंट, आज का मॉडर्न सोसाइटी है इसमें का. दिस इज रेलेवेंट फॉर नेक्स्ट 1000 of years, millions of years and billions of years, because human insight is not going to change. External outlook may change, dress may change, hairstyle may change, cosmetics may change, everything may change, but human being inside will not change for next millions of years, billions of years. change नहीं होगा. इसलिए इंसाइट को चेंज करने के लिए, इसलिए हम जिस सोसाइटी से हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदी में
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण चेतना, ये सबकी हमको एक ही जीवन में चीज चेंज करना है। ड्रेस चेंज करें नहीं करें ठीक है, वो बात की बात है, नहीं करें नहीं करें, हमको इनसाइड में अपने को चेतना चेंज, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस, चेतना चेंज कर देंगे तो सब कुछ चेंज कर सकते, हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते। 1% कैन चेंज एंटायर वर्ल्ड, 1% कैन, एनीवन कैन, 1% कैन चेंज। तो अगर हमारी चेतना कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, चेतना कृष्ण में हो जाए, चेतना को अभी हम डिफाइन करेंगे। आप में से कोई जानता है चेतना किसको कहते हैं? सॉरी, कॉन्शियस तो इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया। some more words। अंतरात्मा भी क्या चीज, कैसे समझा जाए, कोई लेमन कैसे समझाएगा? की समझ। ओके, एक अंदर की आवाज जो होती है, जिससे लोग पूछते हैं हर चीज। अंदर से आवाज कहाँ से आती है? अंदर भी तो मन है, हार्ट है और बहुत कुछ है अंदर। अंदर सोल तो और भी अंदर चला गया, लोअर है, अंदर है, लोअर है। ओके। अंतरात्मा, इंट्यूशन से चेतना बहुत पावरफुल वर्ड है। चेतना, हम अभी भगवत गीता के बाद जब भगवत गीता को समझेंगे तो अपनी चेतना को ही चेंज करेंगे, कॉन्शियसनेस को। हमको अपनी चेतना को कृष्णा कॉन्शियस बनाना, जिसको गॉड कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। पर गॉड कॉन्शियसनेस जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उनको किसी ने सजेस्ट किया कि प्रभुपाद उनका नाम था, उनको बोलते थे प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की फॉर्मेशन। बोले प्रभुपाद आपने इसका नाम कृष्ण कॉन्शियसनेस क्यों रख रहे हैं, इसका नाम गॉड कॉन्शियसनेस क्यों नहीं रखते? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गॉड कॉन्शियसनेस क्यों रखे, कृष्ण कॉन्शियस क्यों रखा? प्रभुपाद ने बोला कि मैं अगर इसको गॉड कॉन्शियसनेस रख दूंगा तो लोग सबसे पहले डिबेट करने के लिए कि गॉड कौन है। कोई बोलेगा ये गॉड है, कोई बोलेगा ये गॉड है, कोई बोलेगा ये गॉड, क्योंकि भगवत गीता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोली हुई। तो मैं भगवत गीता सिखाने आया हूं और भागवतम सिखाने आया हूं, तो पहले मैं गॉड को डिफाइन कर दूं, जिससे अननेसरी लोग वाद विवाद, अननेसरी का आर्ग्यूमेंट, नॉनसेंस चीज सब बोलने नहीं लगे। मैं पहले गॉड को मैं फिक्स कर देता हूं, पहले मैं इससे स्टार्ट करूं, क्योंकि भागवत गीता कृष्ण ने बोली और किसी ने तो नहीं बोली। तो व्हाई टू कीप पीपल इन कंफ्यूजन? मैं गॉड बोलूंगा, कोई बोलेगा ये देवता गॉड है, कोई ये देवता गॉड है, वो गॉड है, वो बोले। मैं डिफेंस को फिक्स करता हूँ, इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मैं भागवत गीता का प्रचार करने जा रहा हूँ। तो कृष्णा कॉन्शियस मैं कृष्ण को कर देता हूँ, क्योंकि कृष्ण बोलिए, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वी आर ट्राइंग टू, थ्रू भागवत गीता वी आर ट्राइंग टू मेक अवर कॉन्शियसनेस फिक्स इन कृष्णा, हमारी चेतना को चेंज किया जा रहा है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था चेतना क्या है, तो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर टुडे इट विल बी हाई लेवल टॉपिक, पर फिर मैं आपको बता देता हूं। चेतना मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड आवर फॉल्स ईगो, इसको मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री थिंग इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस या चेतना। याद रहेगा, ये आगे काम आएगा, सब्सिक्वेंट क्लासेस में काम आएगा। ये चेतना मतलब हम किसको मिला के बोल रहे हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, हिंदी में, इंग्लिश में माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। बट फॉल्स शब्द जरूर लिखना है, ठीक है? फॉल्स शब्द, उसका मीनिंग हम बाद में बताएं। और ये नोट पैड है, इधर लिख सकते हैं आप, इसको अपने नोट से बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में भागवत गीता भी ला के आपको कितनी कॉपीज चाहिए बता दीजिएगा। भागवत गीता ला देंगे तो आप यू कैन कीप योर पर्सनल कॉपी ऑफ भागवत गीता, उसमें पेंसिल से अपने उसमें नोट्स बना सकते हैं। पेंसिल से आप नेक्स्ट टाइम उसमें भागवत गीता नोट, ये फ्यूचर में सारा यूजफुल रहेगा, आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे पाएंगे। हर क्लास के बाद क्विज होगा, ठीक है, जिससे आपने कितने ध्यान से सुना, क्योंकि आप भी अपने वैल्यूएबल टाइम लेके आए, मैं भी अपना वैल्यूएबल टाइम लेके आऊँ, तो बोथ ऑफ अस शुड गेट बेनिफिटेड। मैं चाहता हूँ कि आपका चेतना, मैं चाहता हूँ कि आपकी चेतना कृष्णा कॉन्शियस बने।
जिससे आप भगवद गीता को पूरी तरह फॉलो कर पाएं और अपने जीवन के डिसीजन खुद ले सकेंगे। आप स्वयं गुरु बन जाएं कि जिससे आप दूसरों को भी बता सके, कॉन्फिडेंट कर सके एट द एंड ऑफ भगवद गीता सुनने के बाद। ठीक है, सो उस प्रॉपर मोड में सुनेंगे। और पहले जो हमने कीर्तन किया, आप में से कुछ लोगों ने कीर्तन मिस किया, वो कीर्तन इज लाइक एन आइस ब्रेकर। मतलब सबको एक, जैसे हम अलग अलग मूड से आते हैं, बाहर से आते हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, किसी मूड में आ रहा है, तो कृष्ण जब हम शुरू में कीर्तन करते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट का सबको एक मूड में लाके, एक लेवल पे लाके, देन वी आर प्रिपेयर टू हियर भागवत गीता, वी आर प्रिपेयर विद आवर कंप्लीट अटेंशन। ठीक है, इसलिए पहले हम कीर्तन करते हैं 5-10 मिनट का, जैसे सब लोग कृष्ण नाम। भागवत गीता में 700 श्लोक, इसमें से 580 प्लस है, एग्जैक्टली आप देख, मैं बता दूंगा आपको, बट एक्चुअली मैं अप्रॉक्सीमेट 580 के आसपास भगवान कृष्ण ने बोले हैं, बाकी कुछ 70-80 के आसपास अर्जुन ने बोले हैं, कुछ संजय ने बोले हैं, एक संजय भी कैरेक्टर आएगा इसमें, और एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, जो दुर्योधन का फादर है धृतराष्ट्र। ठीक है, ये भागवत गीता के पहले हो। अब गॉड कौन है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि एक बार जस्ट एक एक करके आंसर दे सकते, क्विकली आंसर दे सकते, जिससे मुझे पता लगेगा कि कितना डेप्थ किसका है। क्या सबको गॉड के बारे में बताना पड़ेगा? गॉड कौन, किसको गॉड बोलते हैं? एक एक करके बता दीजिए, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सब सुपर पावर, ओके, एनीथिंग क्विकली, व्हाटएवर इज कमिंग टू योर माइंड। यहाँ पे कुछ इनफॉर्मल कुछ energy which is inside us, which एनर्जी, is ओके, even I thought of superpower. सुपर पावर, ओके, Energy. एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, एक force है, गुरुजी, एक force है अंदर से जो बोलता है कि ये भगवान है, ये Force, ईश्वर है, okay. force है। ओके, I feel it's the energy around. एनर्जी, ओके, Supreme spiritual, someone who is the guiding light for us. ओके, फाइन, सुप्रीम स्पिरिट, Divine. डिवाइन, Divine power. डिवाइन पावर, जैसे आपने कहा पहले, जो सब कुछ क्रिएट किए हैं, सब कुछ उनके हाथ है। ओके, गुड, क्रिएटर, ओके, I सुप्रीम क्रिएटर, believe your belief is your God. ओके, नाइस, Creator of this universe. क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, The supreme. द सुप्रीम Creator. क्रिएटर, Divine energy. डिवाइन एनर्जी, Creator. क्रिएटर, Divine डिवाइन creator. क्रिएटर, गुरुजी, एक चीज और बोलना चाहूंगी, हाँ। क्रिएटर एंड पालन करता। क्रिएटर पालन करता है। ओके, मैं और आगे बढ़ाऊंगा, आपने 2 बोले, मैं और आगे बताऊंगा। गॉड इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर, GOD, क्रिएट, जिसको दूसरी लैंग्वेज में क्रिएटर, मेंटेनर, पालन करता है, एंड डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, ये भी छोटी डेफिनेशन। ही इज सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम बीइंग, ही इज सुपर सोल, परमात्मा, एंड फाइनली मेरे को बोलना था, ही इज एवरीथिंग, ही इज एवरीथिंग, ही इज इनसाइड ऑल ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ सुपर सोल। वो हमारे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, हमारे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी है। तो कहां तक उसकी पहुंच है? ही इज सुप्रीम क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, कंट्रोलर, सुपर बीइंग। और तो कहां उसकी पहुंच? हमारे हृदय तक। अभी हमारे सबके पास में, सबसे ज्यादा पास में मोबाइल रहता है। मोबाइल से पास में हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के इतने क्लोज नहीं जितने मोबाइल, करेक्ट? मोबाइल से क्लोज एकदम पॉकेट में ही रहता है, मोबाइल से पास कुछ भी नहीं। बट मोबाइल भी बॉडी के बाहर है, ही इज राइट इनसाइड आवर बॉडी, बॉडी के अंदर भी नहीं,
बॉडी के अंदर एक और बॉडी है जिसको हम बताएंगे, एक सटल बॉडी है, एक ग्रॉस बॉडी। स्थूल शरीर जो बाहर से हमारा दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, जो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आईज, ईयर, नोज, थ्रोट, ये सब, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, GROSS, ग्रॉस बॉडी। ये हिंदी में बोलते हैं स्थूल शरीर, बड़ा शरीर, ठीक है। ये आज इसलिए बता रहा हूँ कि भागवत गीता में सारे वर्ड्स हम यूज करेंगे। इसके अंदर है एक और सटल बॉडी जिसको बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं उसको? सूक्ष्म, सटल बॉडी, SUBTLE, सटल बॉडी। उसके अंदर है आत्मा, उसके अंदर है, तो तीन चीजें हमारे अंदर। जब इसको पूरा समझेंगे तो हमको अपने जीवन में फाइट करने सबको हमको पूरा आइडिया रहेगा क्या कौन सी क्या चीज है क्या है, तब जाके हम अपने आप को पूरा से संभाल पाएंगे, विल बिकम कॉन्फिडेंट। तो सबसे अंदर कौन सी, जो आत्मा है, जिसको बोलते हैं सोल। आत्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल। सोल अकेला है क्या? नहीं, अभी मैंने बताया सोल के साथ परमात्मा सुपर सोल भी है। सोल के साथ कौन बैठा उसको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए? सुपर सोल, परम आत्मा। हम क्या है? आत्मा है। और बगल में कौन बैठा है? उससे नजदीक कोई नहीं है, उसे नहीं। अगर हम कॉन्फिडेंट हो जाए, हमारे पूरा ज्ञान हो जाए, तो किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं। सुपर सोल विल स्टार्ट गाइडिंग अस। अगर हमको भगवान के बारे में भगवत गीता के द्वारा पता लग जाए तो इससे नजदीक। मोबाइल कॉल तो बाद में करेंगे, मोबाइल तो उठाएंगे, पॉकेट में निकालेंगे, देखेंगे, मोबाइल कॉल तो बाद में लगेगा, बट सुपर सोल तो सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अस, उससे क्लोज कोई नहीं, उससे क्लोज कोई नहीं। और भागवत गीता की मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भागवत गीता की बता रहा हूँ, उसके बाद आगे डिटेल में जाएंगे। सोल की साइज क्या है? एनी आइडिया? किसी को आइडिया? छोटी सी अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए अभी सबको, लेकिन भागवत गीता खत्म होने के बाद आंसर सबका एक ही होना चाहिए। कभी बार सोल की साइज भागवत गीता में आएगा। टिप ऑफ द हेयर को आप डिवाइड करेंगे 10,000 पार्ट में। टिप ऑफ योर हेयर को इफ यू डिवाइड इनटू 10,000 पार्ट्स, then the size of one part is the size of soul. It is so fine, it cannot be seen through microscope. Most powerful microscope cannot see soul. और उसके बगल में सुपर सोल। सुपर सोल की साइज थंब की शेप की, थंब की शेप की। इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे। श्लोक भी है उसका, जो मैं बता रहा हूं उसका श्लोक है। हर चीज का प्रूफ होना चाहिए। विदाउट प्रूफ वी शुड नॉट बी ब्लाइंड फेथ इन एनीथिंग। जो के रहेगा कुछ श्लोक मिलना चाहिए, शास्त्र प्रमाण मिलना चाहिए, सब कुछ है, तभी हम बिलीव करेंगे, अदरवाइज विल नॉट बिलीव एनीथिंग। ठीक है, तो मैं भी जो भी बोलूंगा आगे उसका श्लोक में एडवांस में कुछ चीजें बता रहा हूँ, सो दैट बैकग्राउंड तैयार करना। तो दिस इज द साइज ऑफ सोल। क्योंकि अगर आप किसी को मरते हुए देख भी लोगे, डेथ हो रही है, तो भी आप उसकी सोल निकलते हुए नहीं देख पाओगे, बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। इस आईज से नहीं देखे, इट कैन नॉट बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप है। इसलिए कई बार देखते देखते किसी की डेथ हो जाती है, पता कुछ पता नहीं लगता है कब डेथ है, बिकॉज सोल, एज सून एज दिस सोल लीव्स दिस बॉडी, person is dead. So soul is so powerful, which is 1/10,000 of the tip of the hair. It is so powerful, it is living force inside us. तो जो लोग गॉड को फोर्स बोल रहे थे, गॉड ने, सोल, आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो इतनी पावरफुल है कि उसके कारण एक बड़ा एलिफेंट भी, जिसका वेट
वेट टन्स में रहता है वो खड़ा रहता है, अगर उसमें से भी सोल निकल जाए वो एलिफेंट नीचे गिर जाएगा। टन्स एंड टन्स का एक ह्यूमन बीइंग हार्ट अटैक होता है, एकदम क्या गिरता है, नीचे गिर जाता है, फ्लैट हो जाता है। क्यों? उसमें से वो पार्टिकल सोल जो है लिविंग फोर्स वो निकल गया। तो ये सच ए पावरफुल सोल। तो इसका जो भगवद गीता का चैप्टर 2 है उस सोल के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन। सोल को समझेंगे, फिर सोल से सुपर सोल का रिलेशनशिप समझेंगे, फिर भगवान शब्द समझेंगे, फिर उसके बाद एक एक करते 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 हम फाइनली 18 चैप्टर तक जाके पूरा साइंस, इस पूरे साइंस को, भगवद गीता इज लाइक ए साइंस, इसको पूरा समझेंगे और उसके बाद में अपना जीवन इसके अकॉर्डिंग रन करेंगे। विल रन आवर लाइफ एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय कृष्ण टू अर्जुन इन द भगवद गीता। ठीक है, सोल की ये साइंस है। तो बॉडी में कितने पार्ट, कितने हैं, कितनी लेयर्स हैं? सबसे ऊपर कौन सी है? ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। हरि बोल, पीछे ध्यान दे रहे हैं आप लोग। सबसे बाहर कौन सा है? दिस इज कॉल्ड स्थूल शरीर और ग्रॉस बॉडी। उसके अंदर क्या है? नेक्स्ट क्या है? सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी। उसके अंदर क्या है? सोल या आत्मा। और उसके साथ में कौन बैठा हुआ है? सुपर सोल, परमात्मा। इफ वी वांट, परमात्मा कैन ऑलवेज गाइड अस। इफ वी वांट, इफ ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, अगर हमारी इच्छा बहुत तीव्र है भगवान से, परमात्मा से गाइडेंस लेना है, तो परमात्मा हमको गाइड करेगा। बट इफ वी हैव डिजायर टू टेक गाइडेंस फ्रॉम आउटसाइड, from people walking on street or from our friends, so-called friends, from our society, then we'll always get confused. अलग अलग लोग गाइड, क्योंकि सबका तो लिमिटेड इंटेलिजेंस। बट हु इज द राइट पर्सन टू गाइड? पर्सन सिटिंग बिसाइड अस, मतलब बिसाइड सोल। हमारा परिचय क्या? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, I am the person sitting inside me, which is soul. मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं। क्यों? इसका कोई प्रूफ है? हरि बोल, ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए, पीछे अटेंशन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, इससे फाउंडेशन बनेगी। मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं। मैं बॉडी क्यों नहीं? अगर मैं बॉडी होता तो फिर डेथ के बाद में मेरी बॉडी को, इस बॉडी को जलाया क्यों जाता, या दफनाया क्यों जाता, या ऊपर क्यों छोड़ देता? अगर मैं बॉडी होता, बॉडी को जलाने के बाद भी मैं जीवित हूं, क्योंकि मैं क्या हूं? सोल हूं, आत्मा। आपने न्यूज़पेपर में कभी किसी का ऑब्ituary होता है, डेथ का वो जो मैसेज होता है, पढ़ा है न्यूज़पेपर? इसके ऊपर कुछ श्लोक होते हैं भगवद गीता के। ऑलवेज यू विल फाइंड, किसी भी सनातन धर्म हिंदू समाज के ऊपर एक श्लोक होता है, एक श्लोक कॉमन है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता। ये आत्मा को, मतलब उसके डेथ के बाद लिखा जाता है, इसको न नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको किसी वेपन से काटा नहीं जा सकता। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, इसको आग में जलाया जा, न इसको आग में जलाया सकता। न क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता, न इसको पानी से भिगोया जा सकता है, न हवा से, न शोषयति मारुता, न इसको हवा से सुखाया जा सकता है। इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। इसका मतलब हर कोई अपने बारे में बोल सकता है कि मैं कभी नहीं मरता हूँ। हर कोई व्यक्ति अपने बारे में बोल सकता है। तो फिर इससे हमारी बहुत सारी चिंताएं, जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम धीरे धीरे इस पे आएंगे तो हमारी जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये धीरे धीरे हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे को तो कोई मार नहीं सकता। मरेगा कौन? मेरा बॉडी, इसी को जलाया जाएगा, इसी को काटा जाएगा, कोई किसी का मर्डर होगा, किसी को कुछ हो किसको काटा है, इसको होगा। बट मैं जो पर्सन हु इज रिसाइडिंग
इनसाइड मेरे को कोई मार नहीं सकता, मेरे को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, मेरे को कोई जला नहीं सकता, मेरे को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आत्मा कितनी प्रोटेक्टेड है, शरीर के ऊपर तो शरीर, तो उसके बाद सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर आत्मा है। आत्मा इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड। भगवान परमात्मा जो है वो उसको पूरा प्रोटेक्शन करता है। तो हमारी जो मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु होती है? बॉडी की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। हमारी कभी डेथ नहीं होगी, हमें कभी डिजीज नहीं होगा। आत्मा को, आत्मा की बात करें, क्योंकि हम, मैंने बोला ना शुरू में, हर कोई अपने बारे में बोल सकता है आई एम द सोल, मैं तो आत्मा हूं, तो ना कोई डिजीज होगा। ओल्ड एज, आत्मा को बुढ़ापा नहीं आएगा, शरीर को आएगा, शरीर को बुढ़ापा आएगा, और आत्मा की डेथ भी नहीं होगी, और आत्मा का जन्म भी नहीं होता, क्योंकि जिसका भी जन्म हुआ है, भागवत गीता के श्लोक आएगा, उसकी डेथ श्योर। तो शरीर का जन्म होता है। माता पिता किसको जन्म देते हैं? शरीर को जन्म। माता पिता आत्मा नहीं देते हैं, माता पिता आत्मा नहीं देते हैं। आत्मा तो माता पिता शरीर देते समय आत्मा उसमें प्रवेश करता है, माता पिता शरीर नहीं देते हैं। मृत्यु के बाद में शरीर को जला दिया जाता है, आत्मा फ्री होता है। इसलिए जो हिंदू सनातन धर्म में क्या होता है, 13 दिन तक जो होता है, 13 दिन तक क्यों रखा जाता है, 13 डेज तक? किसी को आंसर पता है? हाँ, आत्मा तो सबको ही तो पता है कि आत्मा घूमती रहती है, इसका मतलब आत्मा नहीं मरी, क्या मरा है? शरीर को मरा है। तो शरीर, आत्मा, आत्मा क्यों आसपास घूमता रहता है? क्यों आसपास घूमता रहता है आत्मा? मुक्ति चाहिए, मोह की वजह से। मोह की वजह से। क्यों मोह क्यों हो गया? आपके शरीर में इतने जमाने से है, मतलब तो मोह तो हो, यस, आसक्ति होगा, ठीक। इतने टाइम से, जैसे अगर कोई व्यक्ति 70 साल 80 साल तक एक मकान में रहा, ठीक है, तो और उसके बाद 70 साल बाद 80 साल बाद उसको दूसरे मकान में, दूसरे हाउस में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसको उस हाउस की याद आती रहेगी, उसको बार बार देखना है मेरा हाउस का क्या हो रहा है, मेरा हाउस में कौन हुआ, क्या इसको डिसमेंटल हुआ, नया बना, कैसा बना। कई बार उस हाउस को देखने जाएगा कि कैसा क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें इतने टाइम तक रहने के बाद उससे अटैचमेंट हो जाता है, उससे आसक्ति। मोह शब्द यूज नहीं करेंगे, मोह का मैं मीनिंग अलग बताऊंगा, उससे आसक्ति, अटैचमेंट। तो आत्मा को इतने साल तक इस शरीर में रहने से आसक्ति होती है, उसका छोड़ने का मन नहीं करता है, बट ही और शी इज फोर्स्ड टू लिव। उसको उसका समय आने पर उसको फोर्स करके धक्का देके बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे टेनेंट को किराए के घर से बाहर निकाल देता, मकान मालिक लैंडलॉर्ड निकाल देता। यहाँ लैंडलॉर्ड कौन है? भगवान है, कि भाई आपका टाइम पूरा हुआ है, अभी ये घर छोड़ो। आपको इतने टाइम, कोई 50 के लिए आया है, कोई 40 के लिए आया है, कोई 70 के लिए आया है, कोई 80 के लिए आया है, कोई 90 के लिए आया है, कोई 100 के लिए आया है। यू आर फोर्स्ड टू लीव दैट बॉडी, उस घर को छोड़ना पड़ता है। एंड देन यू, आपको एक नया घर मिलता है, नया बॉडी मिलता है, डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट कर्मास। इस लाइफ में जो कर्म किए हैं, इस लाइफ में जो, उसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट ए न्यू हाउस, न्यू बॉडी। ये सब भागवत गीता में बताया जाएगा सिस्टम। थोड़ा हाई लेवल का हो रहा है तो मैं थोड़ा नीचे लेवल का कर दूं, थोड़ा, क्योंकि आगे आएगा, बट बेसिक बैकग्राउंड बताने के लिए, क्योंकि ये साइंस इसमें बताया जाएगा। इट इज साइंस, ये विज्ञान है, ये कोई थ्योरेटिकली ब्लाइंड फेथ नहीं है। किस तरीके से ऑपरेट होता है, जब हमको पूरा ऑपरेशन पता लग गया मशीन का, तो हम फिर मशीन को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं ना। मशीन के बारे में सब कुछ पता लग गया, उसके इन्स एंड आउट्स, पार्ट्स, ये सब पता लगे, तब हम उसको अच्छी तरीके से ऑपरेट। हाँ, अब मेरे को पता लग गया, अब मेरे को कैसा जीवन चलाना है, अब मेरे हाथ में जीवन चलाना। मैं किसी के कहने में, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं किसी से, अगर कई बार बहुत हैप्पीनेस हो गई तो शैंपेन की बोतल खोल के जब
ऊपर छत से टकरा जाएगा, इतना खुशी हो जाएगी। और डिप्रेशन में चले जाएंगे तो एकदम ग्राउंड में अंदर चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो डिप्रेशन में चला गया तो एकदम ग्राउंड लेवल पे चला गया। ठीक है, सब लोग ध्यान दे रहे हैं। तो इन लाइफ को कंट्रोल करने के जब पूरा पता हो तो लाइफ, मतलब हम एकदम हैप्पीनेस में शैंपेन बॉटल खोल के सिर नहीं टकरा जाए ऊपर, इतना खुशी हो जाए, और नीचे डिप्रेशन में चले तो इतना डिप्रेशन में चले जाए कि लोगों हम किसको कोई दिखाई नहीं देगा कहाँ चला गया, इतना नीचे चला गया डिप्रेशन। नहीं, we will be able to control our life. As Bhagavad Gita will bring auspiciousness in our life. क्योंकि why it will bring auspiciousness in our life, हमारे जीवन को मंगल, इसमें मंगलमय क्यों लाएगी? Because we are reciting the words spoken by the Lord Himself, and Lord is all auspicious. भगवान है जहां पे, वहां पे ऑल ऑस्पिशियस। जहां भगवान है नहीं, सब कुछ इनऑस्पिशियस। चाहे हम पंडित जी को बुला लें, ऑस्पिशियस सब कुछ ऑस्पिशियस करवा लें, बट विदाउट लॉर्ड एवरीथिंग इज इनऑस्पिशियस। How can everything be there? Is Lord there in this mic? Okay, so I'll ask question from each and everybody, then after that I'll answer correctly. I'll not correct it whether it is correct or not correct, but since you started this, trigger this question there, so mic ये जो मैं बोल रहा हूँ इसमें भगवान है या नहीं? Okay, you already answered this thing because it is non-living, so भगवान नहीं है, yeah? Okay. इसमें भगवान नहीं। Okay. इसमें अभी सही गलत नहीं बताऊंगा, एक लास्ट में आंसर सोल नहीं है, आत्मा तो नहीं है, परंतु भगवान हर कण कण में बसते हैं, इसलिए इसमें भगवान है। भगवान है। गॉड इज देयर। और सोचिए तो ओके गुड। नाउ मैंने ही पहले बोला था कि गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर पहले बोला, बट ये तो नॉन लिविंग है, करेक्ट? करेक्ट बोल दीजिए, नॉन लिविंग, पर भगवान सब एवरीवेयर है। इसमें सोल नहीं है। सोल किसमें? सारे लिविंग बीइंग्स में सोल है। एनिमल्स में है सोल, ट्रीज में है सोल, बर्ड्स में है सोल, ओके, इसमें है सोल नहीं, बट फिर भी गॉड इज एवरीवेयर। तो गॉड जो है लिविंग बीइंग्स में सुपर सोल के रूप में है, और नॉन लिविंग बीइंग्स में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में। तो वो सही है कि गॉड, लॉर्ड इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी एटम। हर कण में जब बोला जाता है, जनरली हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान कण में है, सही बोलते हैं, बट उनको नॉलेज नहीं कि कण में किस रूप में है। तो जो नॉन लिविंग चीजों में, उसमें आपने एटम बम का नाम सुना है सबने? एटम बम में कोई व्यक्ति रहता है उसको बम को ब्लास्ट करने वाला? नहीं, एटम रहता है, कण रहता है। कण के अंदर, हर एटम के अंदर एनर्जी। कोई साइंस का स्टूडेंट है यहाँ पे? साइंस के नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फिजिक्स में पढ़ेंगे, याद है सब? फिजिक्स में पढ़ा होगा। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रोटेट करता है, और अंदर सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन कहाँ रहता है? हाँ, न्यूक्लियस को डिवाइड करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में।
तो आपने सुना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अंदर गिरता है क्योंकि बिकॉज ऑफ एनर्जी के कारण वो उसमें एनर्जी रहती है। तो हर कण में एनर्जी है, हर एटम में, ध्यान दे रहे हैं, हर एटम में एनर्जी है। इसी को मिला के ये एटम बम जो बनता है, न्यूक्लियर बम बनता है, इसको मिला के ही बनता है, वो ब्लास्ट होता है ऑटोमेटिकली और उससे पूरा की पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसके अंदर एनर्जी कहां से है? वो एटम के अंदर जो एनर्जी है उसको एक्सप्लॉइट, वो एनर्जी, वही एनर्जी भी भगवान लॉर्ड इज यस। गुरु जी को ट्राइंग टू आस्क इज जब हर कण में भगवान है और जब भगवान कहीं है तो वो चीज इज ऑस्पिशियस कैसे हो सकती है? यस, दैट मींस एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस, इट्स जस्ट इन अ माइंड दैट इट्स इनऑस्पिशियस। हाँ, नहीं माइंड नहीं, मैं माइंड की जगह दूसरा वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, इट इज देयर। सो लॉन्ग एज material items are being used in the service of the Lord, then we can recognize the presence of the Lord. But if it is not being used in the service of the Lord, then we cannot recognize Lord. Mic, like currently I am using mic for speaking about Bhagavad Gita. It is being used in the service of the Lord. ये भगवान की सेवा में यूज होगा, करेक्ट? So in that way it is auspicious there. But अगर यही कोई पॉलिटिकल लीडर या कहीं पे भी और कोई XYZ प्रोग्राम होता है यूजिंग दिस माइक, if Lord is inside but he is not recognized that Lord is inside, उसको बोलने को बोल रहा है कि भगवान है, भगवान उसने कैसे दिया, but if we are accepting the existence of God in everything there, then why it should not be used in any other service? Why it should be used in any other service? अगर गॉड का प्रेजेंस है इसके अंदर, इसका गॉड का प्रेजेंस है, तो हाउ इट कैन बी यूज्ड इनसाइड अ पब या कहीं राजनेता या कहीं पे इसको कैसे यूज किया सकता है अगर इसके अंदर भगवान की उपस्थिति है? पब में क्या कहीं पे कुछ भी ऐसा डांस चल रहा है, क्या चल रहा है, इसको फिर कैसे यूज किया सकता है? अगर इसके अंदर भगवान है तो भगवान से संबंधित चीज के अलावा कैसे कहीं और कैसे यूज किया जा सकता है? तो अदर पर्सन इज यूजिंग बिकॉज ही इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड इनसाइड। तो इसको ये मटेरियल इसलिए है, इसमें भगवान की उपस्थिति, जिसने रिकॉग्नाइज कर लिया उसको प्रॉपर यूज करेगा, जिसने रिकॉग्नाइज नहीं किया उसको दूसरा यूज करेगा। भगवान को किसी और चीज में कैसे यूज किया जा सकता है आप बताइए? अगर किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया भगवान को हम किसी और भगवान से रिलेटेड चीज नहीं उसमें कैसे यूज कर सकते हैं, जिस चीज में हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि भगवान है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो गॉड क्या कर्म बोल रहे हैं? हाँ, ये गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हम थोड़ा आगे, कर्म क्या है, गॉड कौन से कर्म करने का बोल रहे हैं और कौन से कर्म करने का नहीं बोल रहे? 3 प्रकार के कर्म बताए गए भागवत गीता में। 3 प्रकार के कर्म, एक जिसको सिंपल कर्म बोल रहे हैं, दूसरा विकर्म और तीसरा अकर्म। हाँ, पॉलिटिशियन को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो भी इसमें बताया, ठीक है? वो सब पर कर्म 3 प्रकार के होते हैं भागवत गीता में। कई बार क्या होता है कि फैक्ट्री में कई बार लिखते हैं वर्क इज वर्शिप। आपने लिखा होगा ऑफिस में फैक्ट्री वर्क इज वर्शिप। वो क्यों लिखते हैं? फैक्ट्री में जब बहुत सारे लेबरर्स काम करते थे ऑफिस में, वर्क इज वर्शिप क्यों लिखते हैं नॉर्मली? जिससे क्या है कि लेबर से वर्कर से और ज्यादा काम करा सके। बोले देखो वर्क इज वर्शिप लिखा, देखो भागवत गीता में लिखा वर्क इज वर्शिप, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट देयर। कर्म करो, देखो वर्क इज वर्शिप लिखा तो सबको काम में, अपने स्वार्थ के लिए सबको काम में लगाया, ये कर्म का दुरुपयोग। तो भागवत गीता में लिखा है कर्म। भागवत गीता में लिखा है कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। ये हम आगे पढ़ेंगे तो करेंगे, डिटेल में करेंगे। अब इसको यहीं पे लेट अस पॉज इट, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। बट ये आएगा कि कौन से कर्म को भगवान करने का भगवान बोलते हैं हमेशा कर्म करना है।
बट कौन सा कर्म शास्त्र के अनुसार है, कौन सा कर्म नॉर्मल है और कौन सा कर्म शास्त्र के अगेंस्ट में है, गीता के अगेंस्ट में होगा। अगर सारे लोग मिलकर शास्त्र के अगेंस्ट में कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, तो भगवान तो उसकी सैंक्शन नहीं दे रहे। इसलिए कर्म की भी डेफिनेशन है, किस कर्म को भगवान सपोर्ट करें कि कौन सा किस प्रकार का कर्म होना चाहिए। जिस कर्म की सैंक्शन है, स्वीकृति, वो कर्म होना चाहिए जिस कर्म की सैंक्शन। तो इसको टॉपिक को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फॉर द टाइमिंग के नॉन लिविंग में एनर्जी के रूप में भगवान शक्ति के रूप में नॉन लिविंग आइटम में, और लिविंग आइटम में भगवान सुपर सोल या परमात्मा के रूप में है। क्लियर है? तो सब जगह भगवान है। कई लोग भगवान की उपस्थिति सब में जानते हैं, कई लोग भगवान की उपस्थिति सब में नहीं जानते। ठीक है, ट्रीज को ब्लाइंडली काटना, अगर भगवान की उपस्थिति उसमें, तो फिर वाई ब्लाइंडली, मैं ब्लाइंडली बोल रहा हूं, एक फर्नीचर के यूज के लिए और उसके लिए सब आएंगे आगे, लेकिन ब्लाइंडली काट रहे हैं, अगर पेड़ों को काट रहे हैं, तो क्या हम भगवान के रूल के अगेंस्ट में नहीं जा रहे? व्हाट डू यू से? सुपर सोल है ना उसमें। वो कैसे पता लगता है कि उसमें जीवन है? अगर आप ट्री को काट दो तो फिर से बढ़ जाता है, करेक्ट? इसको मैं काट दूंगा तो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें लिविंग फोर्स नहीं है। लेकिन ट्री को काटूंगा तो ट्री को फिर से बढ़ जाएगा, फिर काटूंगा फिर से बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर सोल है। तो फिर उसको क्यों काटा जाता है? नहीं, हम तो लाइफ साइकिल से पहले काट देते हैं। वो तो हमारे कोई घर बनाना तो कट, लाइफ साइकिल तो प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स काट देते हैं, पूरी बुशेस सब कुछ काट देते हैं, सफाई कर देते हैं पूरा के पूरा। छोटे एज बड़ा, हम तो छोटा बड़ा को देखते ही नहीं है एकदम। उसका जो चाइल्डहुड स्टेज में करके घास कहीं पे मैदान साफ करना, तो सारा सब चलता, क्यों काटते मेरा का उसमें सुपर सोल? अवेयरनेस क्या नहीं काटना चाहिए? तो हम इसको सीखेंगे, ये भगवत गीता से सीखेंगे, इसको भगवत गीता से सीखेंगे। आप जो बोल रहे हैं काटना चाहिए, वो बोले नहीं काटना चाहिए। हम किस अवस्था में पेड़ को काटना चाहिए, किस अवस्था? हम आदमी को क्यों नहीं काट देते हैं? एक मिनट, हम ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं काट देते? सोल उसमें भी सॉरी, टेररिस्ट मारते हैं, वो तो इसीलिए देखा जाए टेररिस्ट है। हम ह्यूमन बीइंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो पेड़ भी काटते हैं ना, पौधे भी काटते हैं, वो टेररिस्ट तो नहीं काटते हैं। हम लोग भी काटते हैं, पेड़ पौधे को ये तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, हम तो मकान। जीवो जीवस्य चेतनो चेतनस्य, वो भागवत गीता का सिद्धांत है। वो हम तो इससे क्या पता लग रहा है सिद्धांत, कौन किसको मार सकता है, कौन किसको काट सकता है, ये राइट अलग अलग लोगों को अलग अलग उसके अनुसार दिया है। ये भागवत गीता हमें सिखाएगी। अगर हमारा राइट नहीं है और हम काटो, तो विल बी डूइंग ए ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटी, हम अपने जीवन में पाप करेंगे। हमारा जिस चीज का राइट नहीं है उसको करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो हम पाप करेंगे। और इस प्रकार से सिंफुल, आज हमें पाप नहीं लगेगा, आज हमें पाप का पता नहीं लगेगा। अभी आप सब लोग में बैठेंगे, प्रभु क्या पाप किसने देखा, कब देखा, हमें क्या पता पाप का क्या होता है। हम तो अभी तो करते जाएंगे, लेकिन समय आने पर हरि बोल थोड़ा सा इधर ध्यान देना चाहिए पीछे। आई नो आप में से काफी लोगों को नॉलेज होगा, बट मैं एकदम सबके लिए बेसिक से समझा रहा हूँ, ABCD से समझा रहा हूँ। तो आज हम पाप की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी सब लोग ठीक ठाक अवस्था में। कब पता नहीं लगेगा, कब सिचुएशन खराब हो जाएगी। अहमदाबाद करिश्मा मारेंगे, उनको तो पता ही नहीं था। कई लोग तो घरों पर मिलने जा रहे थे, सब कुछ एवरीथिंग वाज। अभी तो बिजनेस के लिए, मीटिंग के लिए जाना था, ये करना था। कब कौन सी चीज कब आ जाएगी किसी को पता नहीं। तो लोग पाप की तब तक चिंता नहीं करते हैं, मुझे क्या मतलब पाप से क्या मतलब, देखा जाएगा जब पाप आएगा तब देखेंगे। जब पाप आता है तो बोलते हैं गॉड प्लीज हेल्प मी, कौन हेल्प करेगा? तो मैंने तो ऐसा जीवन में कुछ काम ही नहीं किया, मैंने तो सारे काम अच्छे किए। हर कोई बोलता है मैंने तो
मैंने कोई पाप नहीं किया, किसको मारा नहीं, कुछ नहीं करा। तो भागवत गीता आपको सिखाएगी कि आप कितने पाप डेली कर रहे हैं। Once we become aware of those sinful activities, जो पाप का, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम से भागवत गीता सुनने के बाद, उन सिंफुल एक्टिविटीज को डेलिबरेटली नोइंगली नहीं करेंगे। अभी तक हमको किसी ने बताया नहीं था, इसलिए हम कर रहे थे, लेकिन भागवत गीता से ज्ञान मिलेगा तो उसका पाप हम इकट्ठा करते जा रहे थे। अब हम भागवत गीता के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अवेयर हो जाएंगे तो हमारे पाप कम होते जाएंगे। सिंफुल एक्टिविटीज जो चीज परफॉर्मिंग जो डेलिबरेटली करें, छोटी छोटी चीज में कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे। इससे हमारी लाइफ की प्योरिटी बढ़ेगी। प्योरिटी बढ़ेगी तो हमारे कष्ट कम होंगे, क्योंकि हर पाप के बदले में एक कष्ट होता है। तो अभी तक हम हजारों, लाखों, करोड़ों पाप कर चुके होंगे। आप जब सुनेंगे, पढ़ेंगे पाप के बारे में तो कर चुके। तो हमें अलर्ट रहना है कि हम, अगर हमें अवेयर हो तो क्यों जबरदस्ती छोटे छोटे पाप करें। जिन पापों को अवॉइड कर सकते हैं, सिंपल एक्टिविटीज को अवॉइड कर सकते हैं, तो इन सिंपल एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या होता है? हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, ये उस पाप का रिएक्शन। हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, उस पाप का रिएक्शन। और जो सुख आते हैं, वो हमारे अच्छे काम का रिएक्शन। तो हमारे जीवन में जो सुख आते हैं और हमारे जीवन में दुख आते हैं, दोनों हमारे द्वारा क्रिएटेड हैं। भगवान का इसमें कोई रोल नहीं। जो सीड्स, जो बीज, जो सीड्स हमने प्लेट में लेके बोए थे, एक जगह मैंगो का लगाया था, एक जगह बबुल का लगाया था, एक जगह नीम का लगाया था, एक जगह करेले का लगाया था, एक जगह पीर का लगाया था, एक जगह एप्पल का लगाया था। सारे बीज हमने इस लाइफ में प्लेट में लेके जो जो बोए हुए हैं, नेक्स्ट लाइफ में वो हमको प्लेट वैसे के वैसे मिलेगा, बट फ्रूट के रूप में मिलेगा। अब इसमें भगवान का कोई रोल है क्या? भगवान का रोल इतना है केवल कि उन्होंने इस सिस्टम से आपको जिसको जो मिलना था उसको वही दिया है। ये जस्टिस वाला सिस्टम उन्होंने बनाया है। जिसको जो जो चीज मिलनी है, किसी को नीम की जगह मैंगो या मैंगो की जगह नीम नहीं मिलेगा। ये उन्होंने सिस्टम बनाया है, जिसको जो जो मिलना है उसको वो हो, मिला है, मिल रहा है और मिलेगा। अन्याय तो नहीं कर रहे भगवान। ब्लेम करना चाहिए क्या भगवान को? अगर हमें कोई भी क्राइसिस में है तो बताइए, सही है गलत है भगवान को ब्लेम करना? हमें क्या सैटिस्फाइड रहना चाहिए लाइफ में कि हाँ जो हमने ये कर्म वही हमें मिल जाए। हाँ, इस चीज के बारे में हमें फेथ होना चाहिए कि हमने जो कर्म किए हैं वही फल हमें मिल रहा है। क्योंकि जो सिस्टम है लॉर्ड का बनाया हुआ सिस्टम है, थ्रू नेचर, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम में गारंटीड है कि हमें वही मिल रहा है। ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, इस नेता ने बनाया, उसने किसी भौतिक जगत के प्राणी ने नहीं बनाया, इसको भगवान ने बनाया है। और भगवान के लिए हम सब बराबर हैं। भगवान के लिए हम सब बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? सोल, जो आत्मा है, इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपर सोल। सोल, ये डेफिनेशन याद रखेंगे आप, आगे भी याद रहेगा। सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपर सोल। हिंदी में बोलना है, हर जीवात्मा भगवान का अंश है। हर जीवात्मा भगवान का अंश है। अब बताइए कि भगवान किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हमने इसलिए बोला हर जीवात्मा
भगवान का अंश है। एवरी लिविंग बीइंग इज, या सोल बोलते हैं, लिविंग बीइंग बोलते हैं, इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपर सोल। या और भी शुद्ध उसमें बोलना है, हर जीव आत्मा भगवान की संतान है, या भगवान सबके परम पिता है। चारों चीज बोली एक ही, चारों का मीनिंग एक ही। अब बताइए कि भगवान किसके साथ भेदभाव करें? ये सब भगवत गीता में मैं एडवांस में उसमें से बता रहा हूं। अब बताइए कि भगवान किसके साथ भेदभाव करें और किस आधार पर करें? तो भगवान नहीं करेंगे भेदभाव, भगवान भेदभाव नहीं करेंगे, भगवान नहीं करेंगे। इंसान में नहीं, कोई दूसरा भी नहीं करेगा, अपने कर्म करेगा, अपना कर्म करेगा, लेकिन दूसरे के माध्यम से हो सकता है। नहीं, हाँ, अच्छा एक मिनट में बताता हूँ, एक मिनट जस्ट, ठीक है सही, नहीं क्वेश्चन है, मैं एकदम एक मिनट में बताता हूँ। मैं इसको पूरा कर लूँ, एक मिनट में क्वेश्चन बात। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, कोई भी नो क्वेश्चन विल रिमेन अनआंसर्ड, क्योंकि भागवत गीता सारे के आंसर देती। ठीक है, तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं, मैं इसको कंप्लीट कर लूं, उसके बाद इस पर आता हूं। हर जीव को अपने ही कर्म का फल मिलेगा। माध्यम कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई शत्रु हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, या कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी हो सकती। ये सब माध्यम है, बट आपको अपने कर्म का फल, अपने ही कर्म का फल मिलेगा, किसी दूसरे के कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। माध्यम आपके बगल वाला हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, एनिमी हो सकता है, या कोई बर्ड हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, या नेचुरल कैलेमिटी हो सकता है। करेक्ट, माध्यम पे नहीं जाना है, हमको देखना है कर्म का फल। मेरे ही कर्म का फल है, गारंटीड आपके कर्म का फल। ये क्लियर है? और कोई नहीं देगा, बट किसी ने दिया तो आप उसको ब्लेम करेंगे, लेकिन उस यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट फ्रॉम दैट पर्सन। वो पिछला हिसाब किताब अलग है, बट यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट दिस, किसी के माध्यम से आ सकता। इसलिए कोई हमारा मित्र होता है, कोई हमारा शत्रु होता है। शत्रु इसलिए होते हैं कि हमको उसके माध्यम से कुछ दुख मिला या कुछ कष्ट मिला, नुकसान हुआ, इसलिए वो हमारा एनिमी हुआ। हरि बोल, ध्यान दे रहे? किसी को क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जितने क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। माध्यम वो होगा तो वो हमारा एनिमी हो गया अगर उसके थ्रू को कष्ट मिला, और किसी के माध्यम से को सुख मिला, वो हमारा फ्रेंड। करेक्ट? तो हमारा भेदभाव क्या है? हमारी आईज के ऊपर एक व्यक्ति हमारा एनिमी है और एक व्यक्ति हमारा फ्रेंड है। हमारी आईज ने जज किया कि वो फ्रेंड है और भगवान ने नहीं बोला है कि आपका एनिमी है। उसके अंदर भी परमात्मा है, हमारे अंदर भी वही सेम परमात्मा है, उसके अंदर भी और हमारे अंदर भी। बट हमने जीवन में डिसाइड किया कि ये मेरे से एनवी करता है, ये मेरे से ईर्ष्या करता है, ये मैं इसको लाइक करता हूँ, इसको डिसलाइक करता हूँ। हमारा जजमेंट, क्योंकि एक ने हमको सुख दिया या हमारी डिजायर्स पूरी की, दूसरे ने हमारी डिजायर्स के अगेंस्ट में काम किया, उसके विरुद्ध में काम किया। आवर जजमेंट। एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब ये बॉडी खत्म होगा तो एनिमिटी भी और एनवियसनेस भी खत्म है, क्योंकि आधार क्या था? हमारी इस बॉडी से हमने नो जजमेंट किया।
सोल का तो कोई एनिमी था नहीं, न है न होगा। सोल का एनिमी कोई नहीं। अगर कोई सोल का एनिमी है तो वो व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि उसने सोल के लिए कुछ नहीं किया। उसने सारा कार्य क्या किया? शरीर के लिए। हम जो खा पी रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। एक ये बर्ड है पीछे, पैरट है पीछे, पैरट। इसको एक केज में बंद कर दिया जाए। इधर भी एक बर्ड है, इसको एक केज में बंद कर दिया जाए, बर्ड को, पैरट को बंद कर, गोल्ड के उस डायमंड स्टड, गोल्ड केज, डायमंड स्टड, और रोज उसको अच्छी पॉलिश की जाए जिससे डायमंड भी चमकते रहे और गोल्ड भी चमकता रहे। लेकिन पैरट को खाना नहीं दिया जाए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? पैरट जो है वीक होता जाएगा, सब लोग एग्री करते हैं, कमजोर होता जाएगा। लेकिन केज चमकता है, डायमंड स्टड केज चमकता है। धीरे 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 वो पूरा मुरझा जाएगा, झुक जाएगा, और हो सकता है एक दिन नीचे गिर जाएगा, उसमें उसी में गिर जाएगा, क्योंकि पैरट को खाना नहीं दिया जाता। उसी तरीके से, ये बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, उसी तरीके से हम बॉडी को पूरा पॉलिश कर रहे हैं, उसको पूरा खाना दे रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, सारे कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बॉडी के लिए, जिम भी जाते हैं, भी करते हैं, लेकिन सोल को फूड नहीं दिया जा रहा है। अगर सोल को फूड, डेली फूड नहीं दिया जाएगा, उसका केयर नहीं किया जाएगा, आत्मा का केयर नहीं किया जाएगा, तो व्यक्ति बाहर से तो चमकता हुआ दिखेगा, बट अंदर से डल होता जाएगा, डिप्रेस होता जाएगा, अंदर से कमजोर पड़ेगा, अंदर से हैप्पीनेस नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर से हैप्पीनेस सोल से मिल रहा है। बाहर की जो ब्राइटनेस लोग देख रहे हैं वो जिम जाने से या खाने पीने से, उससे सब अलग या कॉस्मेटिक से मिल रहा है। तो मनुष्य इस जीवन में अपनी बॉडी की तो पूरी केयर कर रहा है, बट सोल की केयर करना भूल गया है। जब से जन्म हुआ है तब से सोल की केयर करना भूल गया है। इसलिए वो जो जिस हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है, कि मजा नहीं आ रहा है जीवन में, लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, अरे जिम भी आया, इधर घूम भी आया, स्विट्जरलैंड भी घुमाए, न्यूजीलैंड भी घुमाए, इधर भी घुमाए, मजा नहीं आ रहा है, एकदम मजा नहीं आ रहा है। ये लोग तो, कई लोग तो बिना कहीं घूमे ही आराम से मजे में रहते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते, और हम तो घूम के थक गए करते, मजे में एकदम आनंद में रहते, क्योंकि सोल सेटिस्फाइड है जिसकी, वो उसको कोई एक्सटर्नल मीन्स की जरूरत नहीं है हैप्पीनेस के लिए। जिसकी सोल संतुष्ट है, हैप्पी। जिसकी सोल संतुष्ट, जिसकी आत्मा संतुष्ट है, उसको बाहर से कितना भी उसको मूवी देख ले, ये देख ले, उधर घूम ले, इससे मिले, चिट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सारा कर लिया, फिर रात को सोते समय मजा नहीं आ रहा, लाइफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आत्मा संतुष्ट नहीं। आत्मा संतुष्ट क्यों नहीं? ये हाथ है, अगर मेरे को विटामिन डी या जो भी विटामिन होते हैं, कई बार बॉडी में पेन होता है, डॉक्टर बोलता है विटामिन डी के इंजेक्शन लेने के लिए, क्या क्या करते हैं, क्या क्या बीमारी हो जाती है विटामिन डी के, विटामिन, हरी बोल ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी से कुछ बीमारी होती है, हाथ पैर कई बार कुछ दर्द कर रहे हैं, कुछ चीज विटामिन की कमी होती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, विटामिन के इंजेक्शन लो या टेबलेट लो, ठीक है, हाथ पे दर्द हो। तो हमने क्यों, ये विटामिन की कमी क्यों है? हमने प्रॉपर फूड या जो भी हमें सनलाइट लेना, जो भी लेना है, प्रॉपर हमने बैलेंस डाइट नहीं लिया, उसके कारण हाथ पैर में दर्द हो रहा है। तो हाथ में दर्द हो रहा है, तो हाथ में कुछ दर्द हो रहा है, तो इसके लिए स्टमक में, पेट में लेना पड़ेगा, तब जाके बॉडी के एक एक पार्ट ठीक होगा, करेक्ट ना?
बॉडी में पेन होता है, हाथ में पेन, तो क्या होता है, पेन किलर जो लेते हैं मुंह से लेते हैं, ठीक है, हाथ पे तो टच नहीं करते, पेन किलर टच कर दिया, ऐसा होता है कि पेन किलर को टच कर दिया और पेन आर्म में पेन ठीक हो गया, लेग में पेन ठीक हो गया, पेन किलर की टैबलेट टच किया, ऐसा नहीं होता ना। क्या लेना पड़ता है उसको, स्टमक में लेना पड़ता है। तो पार्ट क्यों दुखी है, इसमें दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टमक को बैलेंस डाइट या चीज जो देना है वो नहीं दी। उसी प्रकार से आत्मा क्यों असंतुष्ट है, आत्मा इज सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपर सोल, भगवान का, परमात्मा का अंश। इसका मतलब पार्ट इसलिए अनहैप्पी है, अंश इसलिए अनहैप्पी कि होल को प्रसन्न नहीं किया, बैलेंस डाइट नहीं ली बॉडी में, तो हाथ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, पैर में भी दर्द हो सकता है, फिंगर में, लेकिन उसके लिए क्या टैबलेट को लेना पड़ता है या फिर बैलेंस डाइट के लिए बोला जाता है। तो पार्ट अंश इसलिए अप्रसन्न है क्योंकि होल अप्रसन्न है, होल हैप्पी नहीं है हमसे। तो सोल का फूड है सुपर सोल को हैप्पी रखना, ये आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन क्या है, परमात्मा को प्रसन्न रखना, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा संतुष्ट हो गया तो आत्मा संतुष्ट हो जाएगा क्या, परमात्मा संतुष्ट है तो आत्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का पार्ट है, अंश है। बॉडी अच्छी फिट पार्ट है तो हाथ अच्छे, हाथों पैरों में दर्द नहीं होगा। अगर बॉडी में फिट बैलेंस डाइट लिया, अच्छा भोजन लिया है, तो हाथ पैर स्मूथली चलेंगे। हाथ में या पैर में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से हमारी अगर आत्मा संतुष्ट है, और आत्मा कब संतुष्ट होगी, परमात्मा संतुष्ट है, तो हमें बॉडी के लिए और एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। हम मूवी देखने जाते हैं, सब जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं हम, अरे वो सब लोग ध्यान दे रहे हैं, मूवी में जाते हैं, कई बार मूड ठीक नहीं रहता, चलो मूवी, लेकिन मूवी हमारा मूड 2-2.5 घंटे के लिए ठीक करती है, उसके बाद वापस आके वो चीज हमारी प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं हुई। हमने मूवी जाके क्या किया, प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए भूला। जिसको रात प्रॉब्लम रहती है, रात को शराब पीता है, ड्रिंक लेता है, किसके लिए बोलता है, प्रॉब्लम को भुलाने के लिए। लेकिन मॉर्निंग में प्रॉब्लम तो सामने खड़ी, रात में खाली उसने ड्रिंक करके क्या किया, केवल प्रॉब्लम को पोस्टपोन किया, प्रॉब्लम को भुलाया, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया करता। तो इस संसार में, या किसी ने ड्रग लिया, अमेरिका में हिप्पीज लोग ड्रग लेते थे, ड्रग लिया कि हाई में जाने के लिए, वो थोड़ा ड्रिंक से भी ज्यादा हाई में ले जाता है, ड्रग का इंजेक्शन लगा, ड्रग ले, वो और हाई में ले गया, लेकिन फिर में लो में आना पड़ेगा, वापस से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। हम इन बाहरी साधनों से संसार के सारे एक्सटर्नल मिल से प्रॉब्लम को या तो पोस्टपोन कर रहे हैं या भुलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन हैप्पीनेस तो नहीं ला पा रहे। इनमें से कोई भी हमको हैप्पीनेस नहीं दे रहा। बता दो अगर कोई से परमानेंट प्रॉब्लम है, कोई से परमानेंट, क्योंकि सोल इनसाइड अस इज अनहैप्पी। जो बॉडी का लिविंग फोर्स है, जो बॉडी को चला रहा है, वो अनहैप्पी है। तो एक्सटर्नल गोल्ड के ऊपर, केज के ऊपर गोल्ड पॉलिश करने से पैरेट को तो फूड नहीं मिल रहा, ये तो पॉलिश हो जाएगी। तो सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, पॉलिशिंग के मिस यूज कर रहे हैं। और मॉडर्न तो है कि और ड्रिंक लेते जाओ, और ड्रिंक लेते जाओ, और ये करते जाओ, और ये करते जाओ, और चिट करो, रात को सोने से पहले तो वही निराशा है, सॉल्व तो नहीं हुई प्रॉब्लम। सुबह उठने से पहले तो वही निराशा है, उठने साथ वही निराशा है, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम तो ये रोज की प्रॉब्लम बनी है, ये डेली की प्रॉब्लम बनी। इसलिए हमारी क्लास कितने 6:30 तक, 6 सब ओके है, ठीक है। अभी जल्दी खत्म करना तो बता देना, अगर
हाई लेवल का हो रहा है। सो हमारा तो भगवद गीता हमें ये बताएगी कि हैप्पीनेस का सोर्स क्या है। भगवद गीता हमें ये भी बताएगी कि हैप्पीनेस का सोर्स क्या है। हम जो मीन्स यूज कर रहे हैं वो हमको हैप्पीनेस या ऑस्पिशियस नहीं दे सकता। वी आर यूजिंग, हम पॉलिशिंग द केज को पॉलिशिंग कर रहे हैं। पैरेट को अंदर जो बर्ड बैठा है उसको भोजन नहीं। ये भागवत गीता हमें सिखाएगी। अरे महाराज आपका प्रश्न था? हरे कृष्ण, योर क्वेश्चन वाज, जो भी हम कर्म करते हैं तो गॉड डिसाइड करते हैं उनको। यस, गॉड करते हैं। एक्चुअली सब एडवांस क्वेश्चन है, बट भागवत हम आगे, बट अभी सिंस यू आर आस्किंग दोस क्वेश्चंस, तो अभी मैं इसका आंसर कर देता हूँ, बट आगे भी आगे करते हैं। ये है भागवत गीता में बताया एक पिक्चर है, आप सब लोग ध्यान से देखना इस पिक्चर को। आपके क्वेश्चन का आंसर इससे देंगे हम, इसको समझा के देंगे। ये पिक्चर सबको दिख रहा है? दिख पा रहे हैं सब? सबको ये पिक्चर दिख रहा है? लेफ्ट वाला, इस साइड वाला, लेफ्ट वाला, ये भगवत गीता के एक श्लोक पे आधारित है पिक्चर। इसका एक श्लोक है, उसके बेस पे पिक्चर। ये 3 गुण हैं, 3 जो यहां पे बताई ले रही, ये 3 गुण हैं। All of us operate under the influence of 3 modes of material nature। 3 गुणों के आधार पर काम करते हैं हम, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हरि बोल, ध्यान दे रहे हैं? कौन कौन से गुण है? ग्रुप में डाल दिया, वेरी गुड। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हम जो यहाँ पे हैं, इसमें मेल फीमेल में मत जाइए, ये जस्ट मुझे बताया 3 प्रकृति है, तो इसलिए वो फीमेल बॉडी बताया। इधर जीव है, तो प्रकृति के 3 गुण हमको कंट्रोल कर रहे हैं। नीचे जो जीव है बंधा हुआ है, थ्रेड से बंधा हुआ, सब में रोप है, ठीक है? सबको दिख रहा है? ये आपने व्हाट्सएप में भी देख सकते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से बंधे कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। या इंग्लिश में बोलेंगे मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारी सारी इच्छाएं, ऑल ऑफ आवर डिजायर्स कम अंडर दिस 3 गुणास। सत्वगुण सबसे अच्छा माना जाता है, इसमें डिजायर अच्छी रहती है, हाई क्वालिटी की डिजायर रहती है, राइट? सत्वगुण मतलब मोड ऑफ गुडनेस। दूसरा मोड ऑफ पैशन, रजोगुण में इच्छाएं बहुत सारी रहती हैं और हमें बहुत अचीवमेंट, ये करना, बहुत सारी हजारों इच्छा, इसको भी पूरी करेंगे, इसको भी पूरी करेंगे, ये करेंगे, स्ट्रगल करना, ये मोड ऑफ पैशन है। रजोगुण में बहुत पैशनेट होता है व्यक्ति। और इग्नोरेंस में अरे छोड़ो, सारी चीज, नींद, सोना, लेजीनेस, एंगर, लेजीनेस, एनवियसनेस, तो सब बेकार, डिस्ट्रॉय, सब एकदम नेगेटिव पूरा टेंडेंसी। ये मोड ऑफ इग्नोरेंस या तो अंदर बैठा परमात्मा क्या करता है? भगवान ने हमको इस जगत में भेजा है, भगवान ने हमको इस मटेरियल वर्ल्ड में भेजा है विथ लिमिटेड इंडिपेंडेंस, कुछ सीमित स्वतंत्रता के साथ में भेजा है हमको। सीमित स्वतंत्रता के भेजने में कि हम ओरिजिनली सब लोग सारे आत्माएं भगवान के साथ में थे और उनकी सेवा में उनके साथ रहते थे, बट बिकॉज ऑफ आवर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय में हमारी इच्छाएं भगवान से अलग होने की हुई और सोचा कि हम भगवान से सेपरेट होकर एंजॉयमेंट करेंगे। जैसे होता है इस जगत में, कोई किसी के पिता के 3 पुत्र हैं मान लीजिए, तो
तो उसमें से 2 पुत्र सोच रहे हैं कि हम पिता के साथ में रहेंगे। एक पुत्र ने सोचा कि नहीं, मैं पिता से अलग रहूंगा, मेरे को घर का कंट्रोल और ये सब अच्छा नहीं लगता है, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, अपना अलग घर लेके अलग सेपरेट हो सकता है। पिता को समझाते हैं बेटा साथ में रह लो, सब अच्छा एक साथ ही। उसमें से कोई एक सोचता है मैं एकदम अलग रहूंगा, मैं कहीं दूर रहूंगा। आप तो पिता क्या बोलते हैं, समझाते हैं, फिर नहीं आता तो बोलते हैं ठीक है बेटा चले जाओ। लेकिन क्या सोचते हैं, सुखी रहना, जहाँ पे भी रहना सुखी रहना है करना, उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचते, अलग हो गया तो भी क्योंकि पिता का पुत्र है। बाकी 2 सोचते नहीं हम तो ठीक है यहाँ पे सब सेवा करें। उसी प्रकार से कुछ जीव जो आत्माएं जो इधर इस पे आई, इन्होंने भगवान से सेपरेट रहने का जो भी, हाँ मेल फीमेल जो भी सारी आत्माएं जो सोल जिनको अलग अलग बॉडीज मिली है, यहाँ पे आके हम भगवान से थोड़ा अलग रह के एंजॉय करेंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है अलग एंजॉय करो, और आप हमारे लिए ये संसार बनाया है मटेरियल। किन किन आत्माओं के लिए बनाया है, किन किन जीवों के लिए बनाया है? Those who wanted to live separately from the Lord। अभी हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम थोड़ा अलग रहेंगे, सेपरेटली एंजॉय करेंगे, कंट्रोल करेंगे, आपके कंट्रोल में नहीं रहना, बिकॉज नोबडी वांट टू रिमेन अंडर कंट्रोल। भगवान बोलते ठीक है आओ इस जगत में आओ, मैं इस जगत में आप कितनी भी इच्छाएं कर सकते हैं, और जिसकी भी जो भी अच्छी या बुरी इच्छा है, क्योंकि इच्छाओं के कारण आए ना सब लोग इंडिपेंडेंट भगवान से सेपरेट इच्छा है। अब ओरिजिनल इच्छा तो ये होनी चाहिए थी कि भगवान के साथ रहने की, बट अब इस जगत में इस जगत की अच्छी बुरी अलग है, उसकी भगवान से अलग इच्छा है। अब किसी की अच्छी इच्छा है, किसी की बुरी की इच्छा है, तो भगवान सबके अंदर, परमात्मा के अंदर बैठे हैं, वो उस गुण, तो जो जिस गुण में है, कोई गुडनेस में है, सत्वगुण में है, कोई रजोगुण में है, पैशन में है, कोई तमोगुण में है, भगवान उसको जो जिस गुण में है उसकी वो इच्छाएं पूरी करने के लिए उसको फ्रीडम देते हैं। आगे मैं और भी बता रहा हूं, उसको फ्रीडम देते हैं। बड़ा भगवान बोलते हैं कि इसमें से कई लोगों की इच्छाएं गीता के विरुद्ध है, मेरे विरुद्ध है, और कई लोगों की इच्छाएं मेरे साथ में। बट भगवान ने तो यहाँ पे जीव को इच्छा पूरी करने के लिए भेजा है, अच्छी इच्छा है, पूरी इच्छा। भगवान ने वो स्वतंत्रता दी, तो भगवान वो स्वतंत्रता हमको दे के रखे हुए, लेकिन आप जिम्मेदार हो। अपनी इच्छाओं के कारण आप जो भी कर्म करोगे उसके फल के लिए आप जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार उसके लिए नहीं, क्योंकि आप इच्छा कर रहे हैं। आप मुझसे बोल रहे हैं मेरी इच्छा को आप स्वतंत्रता दी, क्योंकि भगवान ने गारंटी भेजा है स्वतंत्रता की, लिमिटेड। आप जो इच्छा कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा करो। तो चोर चोरी करता है, उसमें भी कई बार सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है? होता है। मर्डर कोई मर्डर करता है, सफल होता है, नहीं होता है? कोई भी आदमी बुरा काम करता है, उसमें भी सफलता मिलती है, क्या सफलता मिलती? कोई अच्छा काम करता है, उसको भी सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। ये सारी भगवान जो जिस जीवन में जैसा ऐसा करना चाह रहा है उसको स्वतंत्रता दी है, और भगवान बोलते हैं ठीक है आप जो करना है जिसको करना करें, बट आपके फलों के लिए आप भी तो दायित्व है। और कोई बोल रहा है भगवान हाथ का पकड़ के क्यों नहीं रोकता है बुरी इच्छा पूरी करने के लिए? क्यों नहीं रोकता है? तो भगवान से अलग हुआ है कि अपना सबकी लगाम तो भगवान खुद ही पकड़ के रखे हैं। नहीं, अभी तो बोला ना कि मैंने एक शब्द बोला था, इच्छा तो इंसान का ये, क्योंकि वो भगवान ने यहाँ पे लिमिटेड इंडिपेंडेंस, सीमित स्वतंत्रता के साथ में भेजा कि इस चीज में मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि भेजा ही इसीलिए। जब कोई भी तो भगवान को कंप्लेंट कर सकता है कि आपने बोला कि स्वतंत्रता के साथ भेजा, लेकिन आप तो मैं चोरी करने जा रहा हूं, आप मेरे को रोक रहे हैं। नहीं तो फिर वो सेटिस्फाई हो कि जब उसको सारे दंड भुगत लेगा, जब उसको पश्चाताप होगा, फिर से वापस कहां जाने की इच्छा होगी? भगवान के पास जाने की इच्छा। पहले कहां से आया था? जैसे कोई सन के फादर का सन जो अलग हुआ, जब सब तरह से फेल हो जाएगा तो क्या वापस उसकी इच्छा होगी? वापस पिताजी के साथ में चलते हैं, उन्हीं से सपोर्ट मांगते हैं, और पिताजी इज ऑलवेज रेडी टू
एक्सेप्ट एंड सपोर्ट। तो इस संसार के क्रिएशन का कारण ये है कि भगवान अच्छी इच्छा बुरी इच्छा और जीव को रोकते नहीं तो फिर जीव का क्या, अगर उसकी बुरी इच्छा पूरी करने से रोकेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल हो गया, फिर वापस ऊपर जाएगा तो फिर पूछे कि भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी, उसकी इच्छा बनी रही। यहां से थक हार के भगवान की शरण लेगा और बोलेगा भगवान आई वांट टू कम बैक टू यू, अब मैं और ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं को आपकी शरण चाहिए। लास्ट तक करता, लास्ट में जाकर प्रे करता, अब मैं आपकी शरण में रहूंगा, आपके कहीं हो जाना। लॉर्ड बोलेंगे बेटा आ जाओ, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि मत जाओ। लॉर्ड इज ऑलवेज देयर बिकॉज वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपर सोल। हम भगवान की संतान हैं। हमारी विकृत इच्छाओं को, डिस्टॉर्टेड डिजायर्स को पूरा करने के लिए भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया। इसके बियॉन्ड एक वर्ल्ड है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसको क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत। तो आज हम ये दो को समझ के यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अपने पर्सनल फॉर्म में रहते हैं और यहाँ पे सबके कण कण में और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। दैट इज लॉर्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। लॉर्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो भी उसको लॉर्ड देख रहा है, कोई सही काम कर रहा है उसको भी लॉर्ड देख रहा है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पिक्चर, ये भगवान अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ये हालांकि करोड़ों माइल से है, लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड में सब जीव, लेकिन उसको कंट्रोल, उसके गुण को जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उसके अनुसार वो डांस कर रहा है। हर आत्मा, हर व्यक्ति उसके अंदर जो मोड ऑफ पैशन है, जैसे किसी के इग्नोरेंस है तो जैसे कोई ड्रंकर्ड है, सारे टाइम सो रहता है, फिर रात को ड्रंक कर लेता है, कुछ काम नहीं करता, इधर से लेके लूट के थोड़ा बहुत चोरी करके कर लेता है। इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में। जो बहुत मेहनती, बहुत अचीवमेंट ओरिएंटेड है, मेरे को वर्ल्ड का पूरा नंबर 1 बनना है, करना, मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। और जो साधु संत जनरली टीचिंग करें, लोगों को ज्ञान देने करें, दे आर इन मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण। जो मिला है उससे कंटेंट है, सेटिस्फाइड है और लोगों को सही मार्ग का उपदेश दें। तो इस संसार में हर व्यक्ति इन तीनों गुणों में इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स आल्सो। व्यक्ति मॉर्निंग में उठता है तो जनरली सत्वगुण में रहता है, दोपहर तक पैशन में आ जाता है, अच्छे मतलब बिजनेस और ये जॉब ये सब, और शाम तक जाके निद्रा और रात तक जाके तमोगुण। दिन में भी गुण वेरी होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं। एक ही व्यक्ति कई बार अलग अलग गुणों में रहता है, कई बार इनके कॉम्बिनेशन रहता है, कई बार रहता है, लेकिन इन जनरल देवता लोग सत्वगुण में रहते हैं, मनुष्य रजोगुण में रहते हैं, पशु पक्षी और नीचे के लिए तमोगुण, या फिर इनके कॉम्बिनेशन में सब सकता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और हमने अभी क्वेश्चंस के बेस पे थोड़ा आगे बढ़े थे। बाकी सिस्टमेटिक ढंग से भागवत गीता, जब आपके पास नेक्स्ट टाइम पे सबके पास भागवत गीता आ जाएगी तो नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको एक चार्ट बताने जाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट होगा। आपने देखा, आप थे उस समय चार्ट। नेक्स्ट हरि बोल, ध्यान दीजिएगा सब लोग। मैं चार्ट लाऊंगा कि आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहाँ पर है, स्वर्ग कहाँ पर है, नरक कहाँ पे है, पाताल लोक कहाँ पे, दूसरे लोग कहाँ पे, ब्रह्मा जी के लोग कहाँ पे, मैं आपको एक पूरा चार्ट बताऊंगा, जिससे आपको पोजीशन पता लगेगी कि हमें कहाँ के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। लोग जनरली मृत्यु होते बोलते स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग के वासी हो गए। हमें स्वर्ग भी नहीं जाना है, हमें नहीं मोक्ष भी नहीं जाना है, हमें उससे ऊपर, हमें उससे भी ऊपर जाना है। वैकुंठ, वैकुंठ मतलब होता है
जहां पे कोई कुंठा नहीं है। कोई कुंठा मतलब क्या होता है? कोई मिजरीज नहीं है। कोई वैकुंठ मतलब होता है जहां पे कोई कुंठा नहीं, कोई मिजरीज नहीं, आनंद का। और हमें यहाँ पे रहते हुए, जब तक हम यहाँ पे रहेंगे, ये जगत भी हमारे लिए वैकुंठ बन सकता है अगर हम उस मूड में रहें और फाइनली उस चेतना में रहें। बार बार मैं यूज करूंगा वर्ड चेतना में, उस कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हम इस जगत में भी एज गुड एज वैकुंठ में, जब तक इस जगत में है तब तक वैकुंठ में रहेंगे, और उसे जाने के बाद भी फिर वैकुंठ में जाएंगे। फाइनली दिस शुड बी द एम ऑफ लाइफ, बाय प्लीजिंग द लॉर्ड, बाय प्लीजिंग द लॉर्ड, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, कनेक्शन सबको समझना है। किसको खुश करने से कहा, कैसे करेंगे, कनेक्शन क्या है, हमको किसको चीज को खुश रखना पड़ेगा। और अभी हम मिसडायरेक्टेड, हम किसी और चीज को खुश रखें। हरे कृष्णा, एक बार सब लोग मिलके बोलेंगे हैंड रेज के। हैंड रेज का मतलब है सरेंडर टू द लॉर्ड, वी आर सरेंडर टू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर क्लास के बारे में कोई फीडबैक हो, आपको कुछ और डिफरेंट तरीके का होता, आप फीडबैक दे सकते हैं या रेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में रेज कर सकते हैं। अभी तो क्वेश्चन का आंसर करने का टाइम नहीं, टाइम खत्म हो गया फिर, लेकिन किसी का भी क्वेश्चन हो कमेंट तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि अपने अगर इंसान को मारते हैं तो उसकी आत्मा निकल जाती है, वो अगर उसको काट देते हैं तो उसकी आत्मा निकल जाती है उसके शरीर में से, जबकि अपने पेड़ को काटते हैं तो उसकी आत्मा रहती है। वो मतलब वो क्या है? पेड़ को काटने से पेड़ का शरीर फिर भी पूरा रहता है। हाँ, क्योंकि आत्मा उसमें है, उसमें आत्मा वो वापस ग्रो करेगा। नहीं, उसका अगर शरीर पूरा खत्म कर दिया जाए तो पेड़ फिर से नहीं आएगा, जड़ से उखाड़ दिया जाए। जड़ से निकाले, पर हाँ। उसको अगर बीज से काटते हैं, जबकि अपने शरीर को बीज से काटा जाता है तो आत्मा चली जाती है। हाँ, हमारे प्राण, उसका सबकी आत्मा की स्थिति अलग अलग है। आत्मा की पोजीशन, हमारे आत्मा की पोजीशन अलग है, उनकी आत्मा की पोजीशन अलग है। उनकी आत्मा की पोजीशन स्प्रेड फैली रहती है, ठीक है, जड़ तक पूरा रहती है। जड़ निकालेंगे तब जाके वो हमारे आत्मा की पोजीशन है। तो हमारा शरीर काट देते हैं, इसलिए हमारी प्राणवायु निकल जाती है। हमारा जो है वो सबकी आत्मा की पोजीशन अलग अलग है। स्प्रेड है, उसकी आत्मा स्प्रेड है, जड़ तक है पूरा। आप उसको पेड़ को कष्ट तो हुआ, लेकिन पेड़ को इसने बोला क्योंकि उसकी आत्मा नीचे तक स्प्रेड है, तो वो आत्मा कटती नहीं। हाँ, आत्मा कटती। हाँ, आत्मा कटती नहीं। हमारे भी आत्मा कटेगी नहीं, शरीर कट जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा बाहर निकल गई। मारने के बाद में हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है, उसकी आत्मा निकलती क्योंकि उसके स्प्रेड है। जिसकी आयु जब तक रहती तब तक उसको कोई नहीं मार सकता। जिसकी आयु, ठीक है। और भी डिटेल में आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रभु जी, एक टाइमिंग को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। किसी को 4 से 6 चाहिए, किसी को 5 से 7, तो वो मेरे को एक बार था कि सब यहाँ है आज। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। और बहुत अच्छा रहेगा कि मैं चाहूँगा कि मैं हरि बोल ध्यान दीजिएगा, मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम अटेंडेंस जिस टाइम पर है, मेरे लिए वो टाइम सुटेबल है। मेरे लिए वो टाइम सुटेबल है जिसमें मैक्सिमम अटेंडेंस रहे, कोई इससे मतलब किसी डिप्राइव नहीं हो, कोई किसी को क्लास लोग अटेंड कर पाए। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बनी रहेगी आपका जब तक भागवत गीता क्लास इंटरेस्टिंग रहेगी। एंड आप उसको अटेंड करिए, आपको अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा इसका, हमारे जीवन में पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं प्रपोजल देता हूँ, पहले तो 5 to 7 में कितने लोगों के लिए कन्वीनियंट है, हैंड रेज करिए। 5 to 7 कितने लोगों के लिए कन्वीनियंट? अच्छा,
करंट टाइम 4:30 to 6:30 किसके लिए, कितने लोगों के लिए कन्वीनियंट? So let's stick to this. ये best time है. Best time is This is the best time. 5 to 7 अच्छा 4 to 6 कितने लिए कन्वीनियंट नहीं कन्वीनियंट? आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है 4 to 6? Now you decide. इसका मतलब है 5 to 7 ruled out. 5 to 7 ruled out. ऐसे बोल रहे हैं कि अपने 1.5 घंटा का क्लास कर ले, 2 घंटा तो ज़्यादा हो रहा है अपने। तो 4:30 to 6 कर लें, या 4 to 6:30. ठीक है 4:30 to 6 आई एम फाइन विद इट. ठीक है, तो 2 घंटे का हम जनरली दूसरी जगह रखते थे कि अभी हम दूसरी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम एक चैंटिंग सेशन करते थे, वो करेंगे तो देखेंगे कैसे करता है. बट सो एवरीबडी विल बी अवेलेबल एट 4:30. ठीक है, सो दैट विल नॉट वेस्ट टाइम एंड देन 1.5 आवर की क्लास. ठीक है 4:30 to 6. ठीक है, एंड देन आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और किसी को ला सकते हैं, तो ओपन है. क्योंकि अभी हमने श्लोक से स्टार्ट नहीं किया, तो 1-2 सेशन और भी हैं जिसमें आप ला सकते हैं, बट दे विल बी मिसिंग दिस बेसिक थिंग देयर. ये बेसिक कंसेप्ट किया है. ठीक है, और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मंत्र को याद रखना, और जब भी याद आए बाद में हम वो जब भी करवाएंगे. ये जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, वेरी इजी टू चैंट है, कलयुग के मंत्र हैं, और हम बताएंगे कलयुग के लिए क्या है, व्हाई इट इज इफेक्टिव, ऑल दोस थिंग्स इस मंत्र को याद है. ठीक है, हरे कृष्ण. You are hosting this. हाँ, कितने कॉपीज लानी है भगवद गीता की, बता दो. कितने होने आज अटेंडेंस आपको? ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा ही है. नहीं बहुत जन है. नहीं बहुत जन के पास भगवद गीता है, आपको पता ही चलेगा. ये वाला जो आप इधर को, हाँ हमको मैंने वाला फोटो डाल दो. हाँ, ये वाला फोटो डाल देना भगवद गीता का. ये वाला फोटो ये मैं ले आऊंगा अराउंड. आई विल ब्रिंग 20 कॉपीज. कितने में? अच्छा 20 कॉपी. जो बोले जो वाला बुक तुमको दिखाए ना, उसका फोटो डाल दो. जिनके पास है फिर उनको बुक लेना नहीं पड़ेगा. फिर प्रभु जी जो लाएंगे नेक्स्ट टाइम, हाँ ठीक है, वो ग्रुप पर डाल दो ना. जिसके पास होगा खरीदना लेना नहीं पड़ेगा. हाँ, जिसके पास वो खरीदेगा. 20 कॉपीज में ले आऊंगा. 20 कॉपीज. हिंदी इंग्लिश बता देना, अपने प्रेफरेंस देना. वैसे हम यहाँ पे मिक्स पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश, हाँ मिक्स में दोनों. ज़्यादा नहीं, ठीक है. मेरे घर में रोज चाय बन गया, रेडी है, बस ला रहे हैं. अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा. आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया. बहुत अच्छा. सबसे बड़ा कल्याण का कार्य ये है. अंशु भाभी बहुत
सेव सारे लोग ग्रुप पे हैं क्या? जो लोग आज आए सब सब No, I will be out. Hi, Shweta. This is Shruti. Thank you so much. It's all because of each other. हमने चलो चुपचाप की का क्लास कर ईशा तुम्हारे तो बहुत सवाल थे। तो शी इज इनटू दिस। हाँ मेरे को देख के नहीं लगता, तो वैसे ऊपर से कहते हैं ना, गुरुजी भी बोले तुमको किताब देख के देखो नहीं फिर जज मत करो। तुमको देख के नहीं लगता, वो हमको को असलियत पता है। हमको नहीं लगता। हम ना फिर हाँ, इसके पिक्चर भेज देना उसमें। क्योंकि कोई कोई पिक्चर डिफरेंट है। हाँ, आप ये वाला भेज देना, मैं इसी वाला। हम बचपन से मम्मी तो बहुत